समीक्षक के रूप में पिछले कई वर्षों से साहित्य की विभिन्न विधाओं में निरंतर सृजनात्मक गतिविधियों से जुड़ी हुई है। डॉक्टर उषा साहनी सरस्वती वंदना और कम्युनिकेशन टुडे की इस वेबिनार सीरीज की पृष्ठभूमि में जानकारी देने के लिए डॉक्टर उषा साहनी। धन्यवाद सर। मां शारदे के श्री चरणों में 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या श्वेत पद्मासना. A warm welcome to one and all. We all are fortunate that because of the heart and mind of Professor Sanjeev Bhanawat, we could get this opportunity to run this webinar series. Professor Sanjeev Bhanawat, an acclaimed professor of media education, he is the one who took the charge to come up with a media journal, but in 2 languages. Before his efforts, everything that was being done in media was only in 1 language, that was English. But observing the need of the hour, he decided to begin with a journal that came up with bilingual. And he gave a platform to many research scholars, students, professors, academicians, plus to that, the practitioners who were there on the field working in media fraternity. Not only with this journal that is Communication Today, coming up with that for last 25 years, last year only we have done the silver jubilee of this journal. But also he made a point that on all these special topics, very specific topics that people should know about media's dimensions, he took out more than 10 special issues on media academics. It was all his baby who grown up so well that he is known across the nation and internationally also. We, with his efforts, joined with his committee to run this webinar series and started on 2nd of October 2020 while the entire nation was struggling because of COVID. But he never stopped. Until date, we are running this webinar series successfully. In the same sequence of the webinar series, today we are here to attend the 57th webinar of this webinar series. The most fortunate thing and the most important thing that I need to share here is the topic that we have chosen today. That is, we are going to talk about a community which really needs to be brought in light, because it's again the part of us only. We cannot deny them. We are and we should be there for every member of this community to understand what this community is, to understand what are the struggles of this community and how they have so far made up their lives, what they are at present. We need to understand. That is why we have come up with a number of speakers. Those will be sharing their thoughts and whatever has happened with them and how they have made it through the journey of their lives. We'll be listening to them straight away from their heart and their mouth. Another fortunate thing, the lovely thing, that the youth of the nation, that is the most important thing. The youth, named as Smile Creators, here they have formed this NGO and they requested Professor Sanjeev Bhanawat to join with this webinar series and put forward what their understanding is about their NGO. So we really thank Professor Sanjeev Bhanawat to come up with this journal
as well as something very important, that he is ready to accept all the new versions of the life, all the new ideas, all the new things that are important to one's life, that means humanity. And he has allowed this platform to talk about on those various topics. So with a big thanks to Professor Sanjeev Bhanawat, I would request him to take the charge of the webinar and proceed further with the rest of the proceedings. Thank you so much, sir. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उषा साहनी, कम्युनिकेशन टुडे की उस विकास यात्रा के बारे में और आज के इस आयोजन की पृष्ठभूमि के बारे में अपना एक वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए। आज के इस कार्यक्रम का, जैसा डॉक्टर उषा ने बताया, कि हमने कोलैबोरेट किया स्माइल क्रिएटर्स के साथ, युवाओं की एक संस्था, बल्कि युवा क्या, मैं तो कहूँ किशोरों की एक संस्था। एक तरफ वो हालात जब हम LGBTQI+ कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, एक ऐसा वर्ग जो अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित है, एक तिरस्कारपूर्ण जिंदगी जीने के लिए विवश है, ऐसे दौर में चंद किशोरों के मन में एक इस तरह की भावना जागृत होती है कि समाज के इन उपेक्षित वर्ग के प्रति कहीं हम एक संवेदनशील व्यवहार को स्थापित करने के लिए प्रयत्न करें। मुझे लगता है जिस देश के किशोरों की इस तरह की एक भावना है, तो निश्चय ही उस देश का भावी स्वरूप जो है वो निश्चय ही स्वर्णिम होना चाहिए। इस विषय को निर्धारित करते समय जब डॉक्टर उषा से मेरी बात हो रही थी और मैंने अपने कुछ मित्रों से जो स्वयं विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, शोधार्थी हैं, जब मैंने उनसे पूछा कि LGBTQ के बारे में आपने कुछ सुना क्या, तो मुझे आश्चर्य हुआ। अधिकांश लोगों ने कहा कि नहीं, हमें नहीं पता। ये जो एब्रीविएशंस है इसको भी वो ढंग से नहीं समझ पा रहे थे। तो मुझे लगा नहीं, समाज को सेंसिटाइज करने के लिए आवश्यक है कि इस तरह के विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। और जब हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इसको शेयर किया तो कई मित्रों ने हमें इस बात के लिए बधाई दी कि आप इस तरह के उपेक्षित अनछुए विषयों के ऊपर इस चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे आज के जो एक्सपर्ट्स हैं वो स्वयं LGBT एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। हम उनके उस पूरे संघर्ष गाथा को आज जानेंगे और समाज और मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है उसके बारे में उनसे हम कहीं लाभान्वित होंगे और आने वाली पीढ़ियों को शायद हम मार्गदर्शित कर पाए। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा शुभम गुप्ता को, जो स्माइल क्रिएटर्स समूह या स्वयंसेवी संगठन की स्थापना में जिनकी महती भूमिका रही है। बहुत, मैंने जैसा कहा कि किशोर 12th पास करके अभी दिल्ली के हंसराज कॉलेज से हिस्ट्री में ऑनर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। एक डिबेटर के रूप में उन्होंने अपने स्कूल कॉलेज में विशेष उपलब्धियां अर्जित की। एक कुशल वक्ता और साहित्य की विभिन्न विधाओं में जिनकी एक गहरी रुचि और पकड़ है, एक ऐसे किशोर युवा को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, शुभम गुप्ता को, जो स्माइल क्रिएटर के स्थापना की उस पृष्ठभूमि की आपके साथ अपने अनुभव जो है वो साझा करें। शुभम गुप्ता। सबसे पहले तो मैं सर का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम इस गहन विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर सकें, एक दूसरे से बात कर सकें, लोगों को इस विषय के बारे में अधिक से अधिक जानकारी पहुंचा सकें। It is indeed a pleasure, just like the colors of this community, even the flares of Smile Creators denote colors, vibrance, happiness, and most importantly, a thought that ignites from the minds of young creators who aim to design and construct a smile on the needful faces. Smile Creators is a journey that started with 4 young minds, today stands on a pedestal where more than 400 hands are working effortlessly and tirelessly for achieving the aim of creating smiles. We at Smile Creators feel that if the youth, the young mind, put our head, heart, and hands into the process of upliftment of kids and people from slum areas or from the backgrounds where people need that extra care to bring smile,
the community, or bring this community into absolutely normal life as the male and female gender is fortunate to have, we can achieve anything. We hope and wish that with another sunshine, even the beautiful people of this beautiful community will also smile without any ifs or buts. Thank you. शुभम की इस काव्यमय अभिव्यक्ति निश्चय ही इनके उस संकल्प की परिचायक है जिस संकल्प के आधार पर उन्होंने स्माइल क्रिएटर की स्थापना की। स्माइल क्रिएटर के सेक्रेटरी के रूप में आप इसका नेतृत्व कर रहे हैं और किस तरह से इन्होंने देश की युवा शक्ति को इसके साथ जोड़ा। आइए अब इन्हीं के साथी स्वास्तिक साहनी, जो हंसराज कॉलेज से ही बीए ऑनर्स अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं, मात्र 17-18 वर्ष की उम्र में इन्होंने एक उपन्यास लिखा अंग्रेजी में जो हमारा समकालीन सामाजिक परिवेश है उसको केंद्रित रखते हुए। स्वास्तिक साहनी वो भी स्माइल क्रिएटर के साथ इसी अभियान में बहुत ही आस्था और समर्पण के साथ संबद्ध है। तो एक कवि और कहानीकार, युवा कवि कहानीकार, डिबेटर स्वास्तिक साहनी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आज के इस विषय पर हमारा एक पूरा का पूरा जो युवा और किशोर वर्ग है वो किस तरह से सोचता है इसके बारे में कुछ अपनी अभिव्यक्ति करें। स्वास्तिक साहनी। Good evening, everyone. The Pride Month nears its end, but the intent behind the celebration of this month must go on forever and ever. Hence, today we have gathered here to reflect on the present status of the LGBTQIA+ community. Our organization, Smile Creators Foundation, is extremely grateful to be collaborating with Communication Today, a bilingual media journal that was founded by Honorable Professor Sanjeev Bhanawat, who is indeed a credible force that can talk about the pains and pleasures that he has come across in making it an incredible name in the media field. Likewise, the pains and struggles of the QIA+ community can be best understood and reflected upon by those who have had a first-hand experience of the same. But before we dive into that, I'm here to shed some light on the history of the community and the road ahead. समलैंगिक होना, ट्रांसजेंडर होना, ये ना तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है और ना ही कोई मॉडर्न इशू। समय की शुरुआत से ही सेम सेक्स रिलेशनशिप्स, ट्रांसजेंडर पर्सन्स सब हमारे समाज का एक हिस्सा रहे हैं। Be it Homer's epics, Sappho's poems, Alauddin Khilji's relationships, Mahabharat's Shikhandi, or even the existence of Ardhanarishwar, the presence of homosexuality and transgender characters have been ever present throughout. This goes to show that being gay, being transgender, and ascribing to different forms of sexuality was perfectly normal. So now the question comes, when did the things change? Homophobia and trans crept in with the transformation in church teachings and worsened during the Renaissance, wherein being gay was dealt with severe punishments that included even being killed, castrated, and oppressed. This homophobia migrated through colonialism. It was primarily the British who banned and criminalized same-sex relationships. मगर हर रात का सवेरा होता है और इसलिए ही 20वीं शताब्दी में अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में कई जगह गे स्पेसेस और बार्स की स्थापना कानूनी रूप से अवैध थी। इसलिए यहाँ पर ऐसी जगहों पर पुलिस रेड्स एक आम बात हो गई थी। The police force used to abuse, oppress and harass the community members. ऐसा ही एक मशहूर बार था, गे बार था, स्टोन वॉल इन, जहाँ के लोग, जहाँ के पेट्रन्स इस ऑपरेशन से तंग आकर 28 जून 1969 को अपनी आवाज उठाते हैं और इस ऑपरेशन के खिलाफ एक अपराइजिंग शुरू करते हैं। This uprising was headed by a black transgender woman, Marsha P. Johnson, and that was when the modern gay rights movement started. आज लगभग 50 साल से ऊपर हो गया है that Britain has decriminalized homosexual acts.
मगर हिंदुस्तान में जहां एक तरफ सेक्शन 377 को अबॉलिश किया जा चुका है, वहीं दूसरी तरफ आज भी समाज में LGBTQ+ कम्युनिटी के प्रति बहुत सी गलत धारणाएं हैं और एक तरह का स्टिग्मा है। यहाँ तक कि जैसा कि भनावत सर ने कहा कि कई लोग ऐसे हैं जो LGBTQ+ की फुल फॉर्म तक नहीं जानते। So for them, I would like to share that it is an gays, bisexuals, transgenders, queers, intersex persons, asexuals, and the plus refers to pansexuals and all those who do not fall within the socially constructed standards of heteronormativity. This is true that today our country has made some progress in regards to LGBTQ+ motives and regarding this field. We have pioneering names that are shining throughout, like Yogi and Kabir, Duti Chand, Gaurav Kapoor, Sushant Divgikar, Onir Trinetra, Lakshmi Narayan Tripathi, and of course, the members that we have today on our panel who will be sharing their stories with us. These all have made us proud, made the nation proud, as well as the community proud. But even still, we have a long way and a long road to cover ahead. That is why it is extremely important to sensitize the people about the normality of being queer. हम और हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जहां किसी की सेक्सुअलिटी से उसे जज ना किया जाए, जहां स्वीकार करने की भावना हो, जहां द्वेष नहीं प्यार हो, जहां इश्क पर पाबंदी ना हो, जहां आजादी कानूनी ही नहीं बल्कि सामाजिक भी हो। आखिर में मैं अपनी वाणी को विराम कुछ पंक्तियों से देना चाहूंगा जो कि मेरी स्वरचित कविता से हैं। ये उनके लिए है जो सोचते हैं कि LGBTQ कम्युनिटी के मेंबर्स की आवाज को दबा पाएंगे या इस पर पाबंदी लगा पाएंगे। कुछ इस तरह है। इश्क करने वाले को तो तुम तोड़ लोगे, इश्क करने वाले को तो तुम तोड़ लोगे, मगर इश्क को कैसे रोकोगे? वो तो बहेगा तुम्हारी नदियों में, लहराएगा तुम्हारी पवन में, चहकेगा तुम्हारे आंगन में, रंग भरेगा तुम्हारे फूलों में। वो तो बहेगा तुम्हारी नदियों में, लहराएगा तुम्हारी पवन में, चहकेगा तुम्हारे आंगन में, रंग भरेगा तुम्हारे फूलों में, इंद्रधनुष बनाएगा तुम्हारे गगन में। क्योंकि इश्क है इबादत और इबादत है अनंत। धन्यवाद। स्वास्तिक साहनी ने बहुत ही प्रभावी और भावुकता के साथ अपने पूरे वक्तव्य को प्रस्तुत किया। इस LGBT समुदाय की उस पूरी की पूरी परंपरा हमारे उस पौराणिक संदर्भों को संकेतित करते हुए हमारे सामने प्रस्तुत किया और अपनी भावनाओं को जिन शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया, निश्चय ही आज आवश्यकता है इसी तरह से आम आदमी को सेंसिटाइज करने की, ताकि वो समाज के उस वर्ग की आकांक्षा महत्वाकांक्षाओं को समझ सके जो वर्ग उन बुनियादी अधिकारों से वंचित है। आजादी के 75 साल हमें हो गए हैं, अनेक प्रकार की रूढ़ियों को हमने तोड़ा, लेकिन क्या कारण है अभी तक इस समुदाय की उन चुनौतियों और समस्याओं की ओर कितना लंबा संघर्ष करा, तब जाकर के सर्वोच्च न्यायालय को 377 जो अंग्रेजों के समय की धारा जोड़ी गई थी IPC में, उसको उन्होंने हटाने की बात की और एक तरह से अपनी पसंद के अनुसार जीवन जीने का अधिकार दिया। लेकिन कानूनी अधिकार भले ही मिल गए हों, क्या वास्तविक तौर पर इन अधिकारों का उपयोग हो पा रहा है? भ्रूण हत्या पर माँ बाप को हम दंडित करते हैं, क्या जीते जी माता पिता एक अपने बच्चे को एक ऐसे कथित अपराध के लिए, क्योंकि आनुवांशिक समस्या है, किसी का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, वो किस तरह से घर से बाहर निकाल देते हैं, किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, तिरस्कृत अपमानित किया जाता है। एक अभी मैंने इंसिडेंटली पिछले साल 1.5 साल में 2-3 इस तरह के आयोजन किए और मुझे मौका मिला, हमने सिनेमा में, साहित्य में थर्ड जेंडर और इस तरह के समाज की अभिव्यक्ति को लेकर कुछ वेबिनार्स किए और संयोग से कुछ इसी वर्ग के जो विशेषज्ञ हैं उनसे संवाद करने का मौका मिला। मैंने देखा किस तरह से उनमें निहित जो प्रतिभा है, उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी तरह की अपने स्किल्स को विकसित किया है
और एक पहचान बनाई है। क्या समाज उनकी उन भावनाओं को समझ के मुख्य धारा के साथ कहीं जोड़ने की कोशिश करेगा? बहुत सारे प्रश्न हैं जिन पे कहीं हमें चर्चा करनी होगी। हमारा सिनेमा क्या गंभीरता से इन मुद्दों को उठा रहा है या कहीं हम उन्हें हास्य के पात्र बना देते हैं? अभी चित्रा मुदगल जैसी हिंदी की महान लेखिकाएं जिन्होंने पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपेरा, किस तरह से बसों में, ट्रेन में जब किन्नर वर्ग का कोई व्यक्ति आता है तो कभी हम डर जाते हैं या कभी हम उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उन्होंने किन्नर से जिस तरह से बात की, कितना मार्मिक उपन्यास। एक बेटा, एक बेबस बेटा किस तरह से अपनी माँ को पत्रों के माध्यम से अपने मन की उन भावनाओं को प्रस्तुत करता है। मुझे लगता है इस तरह के साहित्यिक कृतियां इस समाज के वर्ग के लोगों की मनोभावनाओं को बहुत ही यथार्थ तरीके से अभिव्यक्त कर सकने में सक्षम है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कुछ समय तक कॉलम छापा आउट एंड प्राइड। तो यदि मीडिया और हमारे जो मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, यदि वो इस दृष्टि से प्रयास करते हैं तो मुझे लगता है आने वाले समय में शायद हम इस वर्ग को उसके उन अधिकारों के लिए जिसके लिए उनके मन में एक तड़प है, कहीं कोई पीड़ा है, उस पर शायद कहीं हम कुछ महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूट कर पाए, उन्हें अपनी पसंद का जीवन जीने का अधिकार दे पाए। हमारे टीवी सीरियल्स हैं या और भी जिस तरह की चीजें हैं, तो आनुवांशिक विकलांगता अभिशाप नहीं हो, कानून है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनको अधिकार मिल सके, इसके लिए मुझे लगता है कि कहीं प्रयास होने चाहिए। तो आइए हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं शाभिमा पाटिल जी को। अभी औरंगाबाद जाना हुआ मेरा किसी एक असाइनमेंट के सिलसिले में। जब मैं वहाँ मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में पहुंचा तो वहाँ एक विजिटिंग फैकल्टी के रूप में, यो तो बहुत सारे वहाँ एक्सपर्ट्स आए हुए थे, लेकिन वहाँ पहली बार मैंने शाभिमा पाटिल को क्लास लेते हुए देखा और मुझे बताया कि किस तरह से वो समाज के उन उपेक्षित और दूर दराज के क्षेत्रों में अपने विभाग के वो टेलीविजन कैमरे को लेकर के उस वर्ग की आशा आकांक्षाओं को अपने उस कैमरे के माध्यम से कहीं ना कहीं प्रकट कर रही हैं और अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो किस तरह से प्रसारित कर रही हैं। इन्होंने उन सारी अपने पूरे अध्ययन काल में मराठी में उन्होंने मास्टर्स डिग्री ली, नॉर्थ महाराष्ट्र जो यूनिवर्सिटी है वहां से, और 2 वर्ष तक उन्होंने अध्यापन कार्य किया एक कॉलेज में, और आजकल वो औरंगाबाद की जो MGM यूनिवर्सिटी है वहां पर एक विजिटिंग फैकल्टी के रूप में पढ़ा रही हैं। अनेक तरह के स्किल्स आपने सीखी और अब इस स्किल्स का उपयोग पूरी की पूरी एक पीढ़ी का निर्माण करने में जिस तरह से वो काम कर रही हैं, मुझे लगता है उनकी ये यात्रा बड़ी अनोखी और रोचक होगी। हम आमंत्रित करते हैं शाभिमा पाटिल जी को कि वे आए और अपने अनुभव इस वर्ग को लेकर के जो कुछ आपने महसूस किया है हमारे साथ शेयर करें। शाभिमा पाटिल जी, आपका माइक शाभिमा जी, माइक आपका। हाँ, यस। थैंक यू। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी आदरणीय सर जी ने जो इस मुझे अब चर्चा में सहभागी होने के लिए इतना अच्छा मौका दिया, और सभी जो यहाँ पर वक्ता हैं और जैसे कुछ मान्यवर है जो कि अभ्यासक है, रिसर्चर है, उन सभी को मैं पहले ही धन्यवाद देती हूँ। जिस बात को लेकर आज हम सब चर्चा कर रहे हैं कि एक तो मीडिया का रोल क्या है और सामाजिक स्तर पर समलैंगिकों के प्रश्न क्या है और उन पर किस तरह से मीडिया हो या फिर कला क्षेत्र में किस तरीके से पहल हो रही है। तो हालांकि मैं कहूंगी कि इस बारे में, जो कि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, मराठी मेरी लिटरेचर लैंग्वेज है और हिंदी और मराठी को एज मैं कंपेयर करती हूँ तो भारत में जो कि 2 मूलभूत भाषाओं की एक बात होती है, तो हिंदी साहित्य के परिप्रेक्ष्य में ही हम इस सारी बातों का अवलोकन करते हैं। और जहां तक है कि प्रादेशिक भाषाओं को लेकर भी बात होती है और वहाँ के भिन्न भिन्न क्षेत्रों को लेकर भी बात होती है, फिर वहाँ का मीडिया हो, वो फिर प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या फिर सोशल मीडिया के जरिए जिस तरीके से आजकल यूट्यूब, इंस्टा या फिर फेसबुक पेजेस के माध्यम से इन सारे सवालों पर रुझान होता है। तो मैं कहूंगी कि महाराष्ट्र में एक वातावरण पॉजिटिव है, लेकिन उस तौर पर नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि मूलभूत रूप से हम देख रहे हैं कि समुदाय के सवालों को लेकर आजकल बहुत सारी चर्चाएं होती है। हर हफ्ते देश भर के कुछ गिनी चुने मैगजीन जो कि नेशनल मैगजीन है, जिनका इंटरनेशनल सेलिंग भी है, उनके पोर्टल से लेकर हो फिर या उनके प्रिंट वर्जन तक हो,
ये सारी बातें लिखी जाती है वो, लेकिन बातें लिखते वक्त मैं अपने स्तर पर काम करते हुए मैं इस बात की खबरदारी रखती हूँ कि मुझे मेरे समुदाय के सवालों को लेकर सिंपथाइजेशन क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि सिंपथाइजेशन क्रिएट करना यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, क्योंकि समलैंगिक समुदायों में जिन समुदाय से मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ, इजड़ा और किन्नर कम्युनिटी से जो रिचुअल्स में आती है उनसे मैं बिलोंग करती हूँ, तो सिंपथाइजेशन के तौर पर यहाँ के पेट्रियार्किकल स्ट्रक्चर ने एक भिक्षुकी का साधन मुझे दे दिया है, लेकिन जिसे हम सब कॉन्स्टिट्यूशन वे से हम लड़ाई लड़ते हैं, तो प्राउडेस्ट ब्रेड एंड बटर के लिए आत्मसम्मान के साथ जीना और आत्मसम्मान के साथ हमारी रोजी रोटी और हमारे जीवन यापन की सुविधाओं को लेकर बात करना, तो ये बातें होते हुए नहीं दिखती है। और ये सिंपथाइजेशन जो है फिर से वही लेके जाने की कोशिश करता है, इसलिए मैं सिंपथाइजेशन को कहती हूँ कि सिंपथी मत गेन कीजिए प्लीज, हाँ एम्पथाइजेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक संवेदनशील समाज ही प्रश्नों के सही रुझान तक पहुंच सकता है, उस पर एक सही पहल हो सकती है और उस पर एक हल निकल सकता है कि एज ए ह्यूमन बीइंग। नहीं तो हम देखते हैं कि आजकल टी शर्ट पर लिखा होता है बीइंग ह्यूमन, लेकिन ये बीइंग ह्यूमन वाला टी शर्ट जो है ना, ये कब तक असरदार है और कितना असरदार है, इस पर सच में बात करने की जरूरत है। साहित्य के क्षेत्र में जैसे ही अभी सर ने बात करते हुए कहा कि चित्रा मुदगल जी है, उनका नाला सोपारा 203 होगा, फिर उससे पहले यमदीप हो, या फिर हिंदी में काफी एक लगभग 6 से 8 तक उपन्यास एक है जो काफी ताकतवर प्रतिनिधित्व करते हैं समुदाय के व्यक्तिगत चित्रण को लेकर उनकी सामाजिक अवहेलनाओं के रूप में, या फिर कविताओं के माध्यम से भी हम कविता कोश के अगर हम वेब पेज पे जाते हैं तो आपको दिखेगी कि उसमें एक सतरंगी कलम करके एक वहां पर एक कॉलम है, तो सतरंगी कलम में भी एक 40-45 कविताएं जो लिखी गई है, उनमें कुछ समुदाय के लोगों ने भी लिखी है और कुछ कवि है जो मान्यवर कवि आते हैं देश में के, तो उन्होंने भी लिखी हुई है। तो साहित्य अपनी जगह पर एक दूर दराज की एक लिमिटेशन रखकर इन सारी बातों को प्रेजेंट कर रहा है। हालांकि मैं चित्रा जी के बारे में ये बात नहीं कहूंगी कि नाला सोपारो में उन्होंने जिस तरीके से चित्रांकन किया है सारी समुदाय के प्रश्नों को लेकर, व्यक्तिगत स्तर से लेकर फिर या समुदाय के सामाजिक तौर को लेकर, वो काफी ताकतवर प्रेजेंटेशन है। मैं कहूंगी कि वो पहला एकमेव उपन्यास होगा जो कि किन्नर समुदाय को यानी किन्नर यानी समलैंगिकता के कम्युनिटी में से बिलोंग एक समलैंगिकों से लेकर एक जो हिस्सा है तो उनको लेकर एक काफी अच्छा चित्रांकन उन्होंने ताकत से किया हुआ है। लेकिन उसी तौर पर जिसे हम मीडिया कहते हैं, मीडिया सिर्फ नॉवेल तक लिमिटेड नहीं होता है या फिर स्टोरीज तक लिमिटेड नहीं होता है या फिर कविताओं तक लिमिट नहीं होता है। मीडिया होता है एक पहल करने का ठिकान या जगह जो कि समाज के उस वर्ग तक पहुंचता है। जैसे हम, क्योंकि कोई नहीं ये बचा कि एक आधा घंटा न्यूज ना देखे, हम रैपिड न्यूज वाला एक अभी आया है दौर कि एक 10 मिनट में 50 खबरें या फिर आधे घंटे में पूरे देश भर की खबर बात, तो उस तरीके से हम रैपिड न्यूज भी हो हम देखते हैं, तो उस तरीके से जो आता है वो समाज की भूमिकाओं को बदलने की कोशिश करता है और काफी ताकतवर ये एक माध्यम है। लेकिन ये सारा माध्यम हम देखें तो फिर एंटरटेनिंग शो के जरिए से हो या फिर टॉक शो हो या फिर कभी कुछ सवाल, जैसे अभी हमने देखा कि सेम सेक्स मैरिज को लेकर एक चर्चा चल रही है, तो सेम सेक्स मैरिज की चर्चा को लेकर देश भर में कितने नेशनल चैनल्स पर इस बात को लेकर बहस की, समलैंगिक समुदाय से जो कि एज एन एक्टिविस्ट कर काम कर रहे हैं पूरे देश भर में अलग अलग जगह पर। यहाँ पर मेरे काफी दोस्त इस वक्त है जो कि अपने अपने तबकों में अपने स्टेट्स में वो जहाँ पढ़ रहे हैं या जहाँ काम कर रहे हैं वहां पर इस सवाल को लेकर बात करते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस बात को इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि ये फोकस करना भी जरूरी है कि समुदाय की भावनिकताओं के साथ उनकी लीगल एसेट्स क्या है, उनको सामाजिक स्तर पर, क्योंकि हम अगर स्वतंत्र देश में रहते हैं, संवैधानिक देश में रहते हैं, तो यहाँ पर कानूनी प्रावधान होना जरूरी है, यानी जिसे हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल वे के जरिए उसके लिए कुछ तैयार किया जाना। जैसे नालसा जजमेंट आया, उसके बाद ट्रांस एक्ट आया है, तो उसी को लेकर एक पहल होना जरूरी है, उसको लेकर बात होना जरूरी है। लेकिन ये बातें हमें दिखती नहीं है होते हुए,
सिर्फ एक अलग तरीके से बातें हो रही है, जो बातें हालांकि नहीं होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि हम आगे स्टेप बाय स्टेप 21 सेंचुरी की तरफ हम आ चुके हैं और एक बहुत बड़ा पड़ाव हमने हासिल कर लिया है। आदमी प्रगति के एक अलग शिखर को छू रहा है, लेकिन प्रगति के उन शिखरों को छूते हुए मानवीयता के जो पहलू है, उनमें से समलैंगिकता भी एक मानवीय पहलू है, जो कि नेचर के जरिए आता है, नैसर्गिकता के जरिए आता है। देखिए, जैसे शुरुआती दौर में मेरे एक मित्र ने बात रखते हुए कही, उन्होंने शिखंडी का रेफरेंस दिया, तो मैं कहूंगी जैसे ही मैं युval नोआ हरारी का सेपियंस पढ़ रही थी, या फिर उनका होमो डेउस है, या फिर 21 सेंचुरी के लिए 21 लिसन्स उन्होंने अलग तरीके से किताब लिखी है, तो उसमें काफी सारे रेफरेंसेस आते हैं कि जैसे ह्यूमन स्पेसीज को 10.5 लाख सालों का अपना इतिहास है, तो कोई नहीं बता सकता कि 10.5 लाख साल पहले जो तबका था इंसानों का या जो गुट था, तो उनमें कौन समलैंगिक नहीं होगा। यानी जैसे हेट्रोसेक्सुअल कम्युनिटी का एक इतिहास है, वैसे समलैंगिकों का भी एक इतिहास है, लेकिन पेट्रियार्की ने सिर्फ हेट्रोसेक्सुअलिटी के बारे में ही लिखा। समलैंगिकता को उन्होंने अमानवीय कहा, अननेचुरल कहा, और उसके लिए उसको दर्ज भी नहीं कराया गया। तो मुझे लगता है कि पहला जो फेज है, लीगल लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं एक तौर पर, जैसे कि अभी महाराष्ट्र में मैंने खुद ने पिछले साल अगस्त में यहाँ पर नगर पंचायत या ग्राम पंचायत के चुनाव थे, तो वहां पर ट्रांस को खड़ा रहने का अधिकार नहीं था। हमारी एक सहेली को खड़ा किया, खड़ा करने के बाद हमने देखा कि उसके अर्जी को रद्द कर दिया गया। मैंने पूछा कि क्यों रद्द कर दिया गया। 2011 का एक कागज उन्होंने हमारे सामने लाकर निकाला कि वो सर्वसाधारण महिला या पुरुष इस श्रेणी में नहीं आती है, और यहाँ पर खड़ा रहने का अधिकार सिर्फ औरतों और मर्दों को है, ना कि ट्रांस को है। तो फिर वहां से फिर हमने खंडपीठ में, जो औरंगाबाद का हमारा हाई कोर्ट का ब्रांच है, तो वहां पर हमने एक पिटीशन किया। वो पिटीशन में हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिला। उसके बाद तुरंत महाराष्ट्र के जो निवडणूक आयोग होता है, उन्होंने एक जीआर निकाला। इस तरीके से मुझे लगता है कि स्टेप बाय स्टेप हमें एक लड़ाई को कायम रखना चाहिए, जो कि हम हमारे तबकों में कर रहे हैं, हम हमारी जगह पर कर रहे हैं। लेकिन मुझे मेरी खुद की एक तमन्ना है निजी, यहाँ पर सभी के सामने में व्यक्त करने में मुझे कोई हर्ज नहीं लगेगा, कि आने वाले समय में एक नेशनल मेगा अलायंस हमारा भी होना चाहिए, जिस पर हम हमारे सवालों को लेकर इकट्ठा जूझे और इकट्ठा इस सारी बातों पर पहल करें, इन सारी बातों को लेकर आगे चलें। थैंक यू वेरी मच सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शाभिमा जी। आपने बहुत सारी साहित्यिक कृतियों को उद्धृत करते हुए इस समुदाय के आशा आकांक्षाओं के अनेकानेक पहलुओं को यहाँ अभिव्यक्त किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सहानुभूति नहीं, आत्मसम्मान से जीने का हक मिलना चाहिए। कानून अधिकार भले ही मिल गए हो, लेकिन धरातल पर ये अधिकार फलीभूत हो। संवैधानिक अधिकारों को उनके सही परिप्रेक्ष्य में लागू करने के लिए एक माहौल क्रिएट किया जाए। और वो जो पितृ सत्तात्मक सत्ता की आपने बात कही, किस तरह से यह वर्ग अपने उस सम्मान के साथ जिए, और आपकी ये परिकल्पना की एक राष्ट्रीय कॉन्क्लेव आयोजित किया जाए, जहां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी लोग मिल बैठ करके इन चुनौतियों का, इन समस्याओं का कहीं चर्चा करें, संवाद करें, और जो हमारा मुख्य धारा का मीडिया है इसका भी ध्यान इसकी ओर आकृष्ट हो सके। आपने जिस संघर्ष की शुरुआत की, राजनीतिक अधिकार दिलाने की जो एक पहल की, वस्तुतः मुझे लगता है कि राजनीतिक एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण जब इस वर्ग का होगा, तब शायद सही अर्थों में जिन मूल्यों की, जिन आदर्शों की या जो आप परिकल्पना कर रहे हैं वो साकार हो पाएंगी। जब इस वर्ग के लोग विधानसभा, विधान परिषद और संसद में पहुंचेंगे, वहां शायद वो अपने अधिकारों की लड़ाई करने के लिए, अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए एक मजबूत आधार भूमिका जो है वो तैयार कर पाएंगे। चलिए, अब हम बात करेंगे ऐसी ही एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट से, जिस तरह से शोभिता जी ने संघर्ष किया राजनीतिक अधिकारों के लिए। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में ट्रांसजेंडर शौचालय पहली बार बनवाने के लिए जिन्होंने संघर्ष किया वो है सलमा चौधरी।
आप कल्पना कर सकते हैं सरकारी क्षेत्र में काम कराना कितनी बड़ी चुनौती है। स्थानीय स्तर से लेकर के सत्ता के शीर्ष पर जो लोग बैठे हुए हैं उनके सामने अपनी उन समस्याओं को रखना और उसके लिए पहल करने के लिए बाध्य करना, जन भावनाओं को उसके लिए प्रेरित करना, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। मुस्लिम एकता केंद्र ट्रस्ट की वो अध्यक्ष हैं और ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट के रूप में समाज की उस वर्ग के प्रतिनिधियों को आप सेंसिटाइज करने के लिए, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। मैं अनुरोध करूंगा सलमा चौधरी जी से, उनका स्वयं का जीवन, दैनिक भास्कर में उन पर एक राइटअप छपा था, उसको मैंने पढ़ा, किस तरीके से बाल्यकाल में ही किन किन परिस्थितियों का उनको शिकार होना पड़ा और आज उन सब से बाहर निकल के किस तरह से उन्होंने अपनी एक जगह बनाई है और संघर्ष की वो एक पूरी आधार भूमिका तैयार कर दूसरों के लिए एक प्रेरक चरित्र के रूप में आप काम कर रही है। सलमा चौधरी जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस अवसर पर अपने कुछ अनुभव हमारे साथ साझा करें। सलमा चौधरी जी। देशवासियों को और इस वेबिनार में जितने भी वक्ता हैं, हमारे जितने वक्ता हैं इनको कहते हैं दिन से नमस्कार। मेरी आवाज जा रही है? जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। मेरी आवाज ठीक है। आवाज आ रही? हेलो, हाँ, अब थोड़ी सी आ रही है, एक बार आप बोलना शुरू करें। हेलो, अब आ रही आवाज मेरी? हाँ, अब आ रही है? हेलो, आ रही आवाज मेरी? हाँ, आवाज आ रही है लेकिन क्लैरिटी नहीं है, आप थोड़ा बोलिए। सभी को नमस्कार। आ रही मेरी आवाज? हेलो, हाँ, अब आ रही है। हेडफोन्स हटा के देखिए, शायद आवाज क्लियर हो। अच्छा, हेडफोन हटा दो। हेलो, आ रही आवाज मेरी? हाँ, आवाज आ रही है लेकिन इको कर रही है आवाज, क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। मुझे लग रहा है नेटवर्क चला गया है। नहीं, हाँ, स्टिक हो गया, फोटो स्टिक हो गया। हेलो, आप मेरे ख्याल कंटिन्यू कीजिए, आप शायद कुछ बोलेंगे तो ठीक हो जाएगा। आ रही आवाज आप मेरी? हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए, बोलिए आप। ओके ओके ओके। सभी देशवासियों को नमस्कार। और इस वेबिनार में जो हमारे है और सभी को और हमारी जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से सभी को नमस्कार। और मैं सलमा चौधरी, वाराणसी से, उत्तर प्रदेश। आवाज नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है नेटवर्क की प्रॉब्लम इनके। सर, मैं कॉल ट्राई करती हूँ, आप रामकली जी को इनवाइट कर लीजिए। अच्छा, चलिए, जब तक कुछ तकनीकी समस्या नियंत्रित होती है, हम आमंत्रित करते हैं रामकली जी को। रामकली जी बसेरा सामाजिक संस्थान की संचालिका है और वर्ष 2011 से आप नोएडा में मुख्य धारा में इस वर्ग के लोगों को लाने के लिए प्रयत्न कर रही है। ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट के रूप में इनकी संघर्ष गाथा भी एक प्रेरणा का आधार रही है। मैं अनुरोध करूंगा रामकली जी से कि वे आज के हमारे इस वेबिनार को संबोधित कर अपने अनुभव शेयर करें। रामकली जी। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले सभी लोगों को मुझे
इनवाइट करने के लिए, और पूरा मंथ हो गया है मीटिंग अटेंड करते हुए, प्राइड में जाते हुए, बट लास्ट में भी मुझे मेरे लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है आपके माध्यम से। मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लग रहा है। और सबको नमस्कार, मेरा नाम रामकली है और मैं दिल्ली एनसीआर के अंदर मेरा ऑर्गेनाइजेशन है बसेरा सामाजिक संस्थान, और मैं यहाँ पे ट्रांसजेंडर बहनों और किन्नर समुदाय बहनों के लिए, अपनी बहनों के लिए 2011 से काम कर रही हूँ, और मैं एक ट्रांस एक्टिविस्ट हूँ। तो काम तो कर रही हूँ, बट सर जिस तरीके से, जैसे अभी हम देखें कि 2022 है और 21वीं सदी है, तो आज भी हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए लड़ना पड़ता है। अगर मैं बात करूं कि अगर जिस तरीके से अधिकार आज हमें मिलने चाहिए फ्रीडम होके, जैसे हम आज बात करते इक्वलिटी की, तो हम रोड पे नजर आते हैं जब हम गे प्राइड के लिए निकलते हैं। इस महीने मैंने देखा बहुत सारी जगह मेरी हजारों सौयों बहनें रोड पे निकली है और उन्होंने अपने लिए आवाज उठाई है, बट कहीं ना कहीं वो आवाज अभी शायद सरकार की नजर में तो है कि हाँ ये लोग हैं, लेकिन सरकार अभी क्या कर रही है, डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, हमारे लिए सीटें रिजर्व होती है, हमारे अधिकारों की बात होती है, लेकिन वो बनते हैं डॉक्यूमेंट्स और वो बंद होके रखे जाते हैं। शायद मेरे हिसाब से जिस तरीके से काम होना चाहिए अभी उस तरीके से नहीं हो रहा है। और मैं नोएडा में पिछले 2011 से काम कर रही हूँ, तो अभी जो मुझे चाहिए था शायद मैं वहाँ तक नहीं पहुँची हूँ। जैसे भी मैंने काम किया अपनी बहनों के लिए स्किल डेवलपमेंट को लेके, और हेल्थ तो हाई है क्योंकि हम लोग हैं, तो हेल्थ तो हाई है हमारे लिए, HIV STI इसके लिए तो मैं काम करती हूँ, साथ ही साथ मैं काम करती हूँ हेल्थ जॉब के लिए। तो अभी आप देखेंगे कि नोएडा के अंदर एक मेट्रो स्टेशन है जिसका नाम प्राइड है, तो वहाँ पे मेरी 5 बहन भाई काम कर रहे हैं। बहन भाई इसलिए कि वहाँ पे बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हुई थी कि हम पूरे मेट्रो स्टेशन पे आप देखिएगा कहीं पे भी 50-60 लोग जॉब करते हैं, लेकिन वहाँ पे केवल अभी 5 लोग जॉब कर रहे हैं, जिसमें से 3 ट्रांस वुमेन है और 2 ट्रांस मैन है। नोएडा अथॉरिटी के अंदर 2 ट्रांस वुमेन काम कर रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली स्टेट लीगल अथॉरिटी, उसके अंदर 2 लोग जॉब कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट, रेड क्लिप, अलग अलग जॉब कर रहे हैं, लेकिन आज भी मेरी कितनी सारी बहनें हैं कि हम उंगली पे गिन सकते हैं कि बसेरा ने ये अचीव किया है, अभी इतने लोगों की ही जॉब लगी है, जबकि बसेरा 1700 लोगों पे काम करती है। अभी बसेरा के अंदर जो रजिस्टर्ड लोग हैं वो 1700 है जिन्होंने अपना HIV STI टेस्ट करवाए, उसमें से केवल अगर उंगलियों पे देखा जाए तो केवल 50 लोगों की, जो 50 से भी बहुत कम है जिनकी जॉब लगी है, और जरूरत सभी को है जॉब लगने की, लेकिन लोग सेंसिटाइज नहीं है। आज भी अगर मेरी बहुत सारी बहनें जॉब के लिए जाती हैं और वो अपना इंटरव्यू देने के लिए जाती, तो सबसे पहले उसको देख के उसके कमेंट किया जाता है, उसको वेलकम नहीं किया जाता वहाँ पे, अरे आप तो हिजड़े हो, आपका यहाँ पे क्या काम है। तो मैं इन सब चीज़ों के लिए काम कर रही हूँ और करती रहूँगी, और शायद आप सबके सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ, और इंशाल्लाह और भी अच्छा काम करती रहूँगी। चलिए, हम हमारी शुभकामनाएं हैं आपके संकल्प के लिए कि ये फलीभूत हो। ये सही कहा आपने कि जिस तरह के शब्दों का प्रयोग इस समुदाय के लिए किया जाता है वो उनके लिए बहुत ही कष्टप्रद और अपमानित करने वाला है। उम्मीद करते हैं आपने जिस तरह से पिछले 1 दशक से आप प्रयत्न कर रही हैं, आपके वे प्रयत्न फलीभूत होंगे और आप अपने उन सपनों को साकार करने की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे। थैंक यू सर। अब हम आमंत्रित करते हैं रुद्र प्रताप सिंह को, फिर एक किशोर जिसने अभी अपनी 12वीं क्लास पास की है और अभी कॉलेज में प्रवेश लिया है। अपने इस अल्प वय में ही, छोटी सी उम्र में ही अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। विभिन्न देशों के राष्ट्रगान को उन्हीं की मूल भाषा में कंठस्थ कर उन्हीं की उस धुन के ऊपर गाने की क्षमता इस युवा में है, और ऐसा 1 नहीं 2 नहीं 3 बार उन्होंने किया, और इस प्रकार से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। उन्हीं का लहजा और उसी की ट्यून पे गा करके उन्होंने अद्भुत उपलब्धि हासिल की। अभी तो एक तरह से इन्होंने जीवन को देखना शुरू किया है, लेकिन अभी से इनके मन में एक तड़प, LGBT एक्टिविस्ट के रूप में ये काम कर रहे हैं, और एक राष्ट्र गौरव के रूप में आपको सम्मान मिल चुका है। मिस्टर यूनाइटेड वर्ल्ड गोल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं आप 2022 के, और
लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी को लेकर के अनेक जगह आपको अपनी बात कहने का, अनेक सेमिनार्स में, अनेक मंचों पर आपने अपनी बात कही है। ये शख्सियत है रुद्र प्रताप सिंह। मैं आमंत्रित करूंगा इस युवा को, रुद्र प्रताप सिंह, कि वो किस तरीके से इस सारे परिवेश को देखते हैं, महसूस करते हैं, तो अपने मन की वो छटपटाहट, अपने मन का वो जो उनका चिंतन है, वो आज हमारे साथ शेयर करें। रुद्र प्रताप सिंह। रुद्र आवाज, हाँ सलमा जी, अब आपकी आवाज क्लियर है। रुद्र जी के बाद आपको बुलाते हैं। हाँ, मेरा आवाज क्लियर, हाँ, मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। ये रुद्र जी के बाद आपको बुलाएंगे। और मैं प्रोफेसर रत्नम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि वो भी इस वेबिनार में हैं, और आप सभी ने जो भी बोला और आप जो आगे बोलने वाले हैं उनको वो सुनेंगे। और वो जिस पद पर हैं वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि वो यहाँ हैं। रुद्र की बातचीत के बाद हम उन्हें जरूर एक मौका देना चाहेंगे, जिससे कि मौका हम क्या देंगे, मतलब हम चाहेंगे कि वो अपने कुछ भाव यहाँ पर रख सके दोनों स्पीकर्स के बाद में, ताकि हम उन्हें भी सुन सकें। रुद्र, आपका वॉल्यूम नहीं आ रहा है। थैंक यू। हाँ, नाउ इट इज देयर। No, it's not there. Am I supposed to say something? So just we'll take these two speakers, and then we would love if you can share your ideas. First of all, I congratulate for this wonderful event, and So right just now we want you to listen to Actually- two of our speakers, sir. Hello. सर दो स्पीकर्स हमारे हैं अभी, उनको मैं चाहूंगी कि आप जरूर सुने। Right. Definitely. Please. या थैंक यू सर। रुद्र, आप इस ये ईयरफोन के बगैर बोले तो शायद आ जाए आवाज। नो, हाँ ना, यू आर म्यूट एक्चुअली। आप माइक अनम्यूट करो बेटा। माइक म्यूट है आपका। आई कैन सी द क्रॉस ऑन योर माइक। यस। तो नमस्कार, मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है। मैं 18 वर्ष का सेंट मेरीज एकेडमी मेरठ कैंट में पढ़ता हूँ। एंड मैंने 3 कंट्रीज के मोर देन 25 कंट्रीज के नेशनल एंथम्स गा रखे हैं, एंड मुझे 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित करा गया है। मेरे प्रोनाउंस ही हिम हैं। एंड जैसे कि हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं, लोग LGBTQ कम्युनिटी को बहुत ही ज़्यादा लेफ्ट आउट करते हैं, बिकॉज हमने जैसे कि हिस्टोरिकली जो भी पोर्ट्रे करा है LGBTQ कम्युनिटी को, वो सब मीडिया ने पोर्ट्रे किया है, जो बिल्कुल नेगेटिव स्टाइल में। बिकॉज स्टार्टिंग में इंडिया ने ब्रिटिशर्स के रूल टाइम पे इंडिया ने जो हिजरा कम्युनिटी थी, उनको ब्रिटिशर्स ने अबंडन करना चाहते थे, बिकॉज उनको लिटरली वो डिफरेंट समझते थे। बट हमारी अब कंट्री में बहुत ज़्यादा चेंजेस महसूस हो रहे हैं, एंड इवन वेस्टर्न कंट्रीज काफ़ी ज़्यादा बिग स्टेप्स उठा रही हैं जेंडर इक्वालिटी और LGBTQ कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट हमारी जो आइडियोलॉजी है वो मोस्टली रिलीजन और मीडिया पोर्ट्रे करती है सोशल मीडिया हैंडल्स पे या फिर न्यूज़ चैनल्स पे, जो कि हम लोगों को एक स्टेप उठाना चाहिए और क्लियर पिक्चर LGBTQ कम्युनिटी की पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड बतानी चाहिए। So if we change right now, then there will be a better future ahead. Thank you so much. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रुद्र प्रताप, आपकी शुभकामनाओं के लिए। और अब हम आमंत्रित कर रहे हैं सलमा चौधरी जी को कि वे आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। सलमा। सभी देशवासियों को नमस्कार, और इस वेबिनार में जितने भी हमारी वक्ता जुड़े हुए हैं और हमारे संचालन महोदय को भी तहे दिल से नमस्कार। मैं
वाराणसी से उत्तर प्रदेश में सलमा चौधरी, और मैं एक ट्रांसजेंडर्स हूँ और मुझे फील है कि मैं ट्रांसजेंडर्स हूँ, मगर परिवार मुझे एक्सेप्ट नहीं करता। वो एक्सेप्ट कर रहा है कि वो लड़का है, लड़का पैदा हुआ है, वो लड़का है। परिवार की नज़रों में हम लड़का है, मगर हमारी जो फीलिंग है अंदर की, जो हमारी सोच है, जो हमारी भावनाएं हैं, वो फीमेल जैसी है। मगर हमारे परिवार वाले और हमारे जो समाज के लोगों को हमारी भावनाओं को, हमारी फीलिंग को नहीं समझ पाते। वो हम समझ रहे, दर्द हमें हो रहा है, दर्द को हम सह रहे हैं, दर्द को साझा हम कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा है। ऐसे ही होती हमारी जिंदगी। हम अलग हैं, मगर हम जब परिवार से बाहर आए, हम परिवार से बाहर जब आए, किन्नर समुदाय से हम मिले, किन्नर समुदाय ने कहा कि आप नाचो गाओ, बधाई करो, ये करो वो करो। तो मेरी सोची कि हम क्यों बधाई करें, हम क्यों टिकली बिंदी क्यों लगाए। भाई मेरा अधिकार, हम लगा सकते नहीं भी लगा सकते, मगर संवैधानिक तौर से देखा जाए तो हम आजाद हैं इस देश में, और आजादी से हम जी सकते हैं। चाहे हम लड़का बन के रहें, चाहे लड़की बन के रहें, चाहे किन्नर बन के रहें, चाहे गे बन के रहें, ये हमें अधिकार है जीने का। मुझे मालूम है कि भारत में कैसे इस आजादी के बाद हमें कैसे जीने का हक है, मगर हमें ये समाज से, हमें ये परिवार से आजादी नहीं मिली है। अभी हम आजाद नहीं हुए हैं। समाज आज भी मुझे ताना देता है, परिवार आज भी मुझे ताना देता है, परिवार आज भी हमें घर से बाहर निकाल रहा है। एक किसी के पास छत भी नहीं है, घर नहीं है, उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, कोई राह नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। हम जाए तो कहाँ जाए जब परिवार हमें निकाल देता है। हमारे लिए कोई ऐसा आश्रम भी नहीं बना है, हमारे लिए कोई ऐसा चाइल्ड लाइन नहीं बना है कि हमें घर से भगा दिया जाए तो हमें कोई ले जाके चाइल्ड लाइन में डाल दे। हम इतना परेशान होते हैं, हम भूखे सोते हैं, हम रोड के किनारे सो जाते हैं। ये हमारी जिंदगी है, मगर हम अपनी जिंदगी को कैसे साझा कर रहे, समाज नहीं समझ पा रहा है। समाज हमारी नेगेटिव चीज को देख रहा है कि तुम टिकली लगा रहे हो, बिंदी लगा रहे हो, तुम फीमेल जैसी हरकतें कर रहे हो, चटक रहे हो, मटक रहे हो, छक्का है, ये जुड़ा है कहना। ये जो समाज इस तरीके से हमें इस मुक्त धारा में न ला के हमें समाज प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है। तो हमें इससे आगे और क्या करना चाहिए। हमें जैसे कि अब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, छोटे बच्चों को, कि ये बेटा इस किताब में लिखा है कि देश की आज़ादी इस वक्त हुई, इस देश का लाल किला है, ये महात्मा गांधी है और ये झांसी की रानी है, ये बहुत महान थी। ऐसे ही मेरी जो सोच है, मैं कह रही हूँ कि जो कक्षा 5 से लेकर जितने भी क्लासेस आते हैं उनमें आर्टिकल आने चाहिए। किन्नर समुदाय के एक संस्कारिक आर्टिकल होने चाहिए कि वो बच्चे पढ़ें, वो बड़े होकर, बालिग होकर, वो ट्रांस को देखकर, गे को देखकर और लेस्बियन को देखकर इस तरीके से उनके मन में ना चले, नेगेटिव ना चले, उनके मन में पॉजिटिव चले कि बेटा हाँ, इनको भी जीने का अधिकार इस देश में है, समाज में जीने का अधिकार है। मेरा भी मन करता है कि हम किसी को पापा बोले, मेरा भी मन करता है किसी को भाई बोले, मेरा भी मन करता है किसी को बहन बोले, मगर हमारे जो ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी है, हम अपने को ही परिवार बना लेते हैं और परिवार बना के किसी को मम्मी बनाते हैं, किसी को भाई बनाते हैं, किसी को बहन बनाते हैं। अपनी जिंदगी इसी तरह हम साझा करते हैं, मगर हमारे दुख का साझा करने वाला कोई नहीं है। सरकार ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून, थर्ड जेंडर जिस कानून को बनाया है, उस कानून से हम स्वतंत्र हैं। हमें उससे फील हो रहा है, हमें राहत मिली है, मगर अभी सामाजिक स्तर पे हमें राहत नहीं मिली है। इससे जो हमारे लोग हैं, कॉलेज हो गए और स्कूल हो गए, इसमें अवेयरनेस हमारे लिए चलानी चाहिए कि बच्चे समझ तो पाएंगे। बच्चे अगर से एक मेल फीमेल के स्कूल में अचानक से कोई ट्रांस एडमिशन ले लेता है तो बच्चा बिल्कुल भावुक तो हो जाता है कि ये जैसा इंसान कहाँ से आ गया। मगर हाँ, उस ट्रांसजेंडर्स के अंदर इंसानियत है, मगर हाँ वो तो छोटा सा बच्चा है, उसके अंदर इंसानियत की कोई बात ही नहीं है। मगर हाँ, इंसानियत टीचर के अंदर होनी चाहिए। नहीं बेटा, जैसे आप हो जैसे ये भी हैं, ये भी जैसे तुम माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं,
ऐसे ये भी माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं। ऐसे जैसे जीने का अधिकार तुम्हें है, ऐसे इनको भी है। हमें जीने का अधिकार बिल्कुल हमसे समाज के बीच हमसे छीन लिया गया है। हमें बहुत दुख होता है, जब कोई गर्व से बोलता है पापा, मम्मी, भाई, बहन। आज मुझे तकलीफ होता है, मेरे पास भी पापा होता, मेरे पास भी माँ होती तो हम भी गर्व से बोलते। मगर हाथ जोड़ के ये शासन और सत्ता से और जितने भी लोग अवेयरनेस चलाने वाले हैं, जितने संस्थाएं हैं, उनसे निवेदन है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम एक और अपील अपनी बात रखना चाहते हैं कि ये किताबों में आर्टिकल आ जाए। कक्षा 5 के बच्चों और जो 10 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आर्टिकल आए, वो बच्चे हमारी आर्टिकल पढ़ के हमारे लिए, समाज के लिए एक नई पहल लाए। इस तरीके से मैंने यहाँ पर गुलिस्ता एकता किन्नर ट्रस्ट भी मैंने बनाया। अकेले बल पे मैंने इसको बनाया और मैंने किन्नर समुदाय को इससे जोड़ा कि आओ, आप अपनी सोच को बिल्कुल बदलो। आप कहाँ पीछे हो? आप पढ़ो, आप लिखो, आप रोजगार भी कर सकते हो, आप दुकान भी कर सकते हो, आप करो। आप समाज में, आपको जीने का अधिकार है। आप कहाँ जा रहे हो? हम उनको हर रैलियों में है, हर अभियान में उनको बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं कि समाज की सोच बदले। इनके अंदर जो नेगेटिव चल रहा है वो पॉजिटिव सोच हो जाए इनकी, हम ये चाहते हैं। और आगे भी हमारा काम यही होगा कि हर जैसे सेमिनार हो या जैसे कोई अवेयरनेस का प्रोग्राम हो, कोई जागरूकता अभियान हो, हम उस पर किन्नर समुदाय को जरूर इनवाइट करते हैं कि इनकी सोच बदले। बहुत से किन्नर होते हैं कि बोलते हैं ये क्या कर रहा है, ये तू ऐसे बन के घूम रहा है, बाल रख के घूम रहा है, ये मेरा अधिकार है। वो प्रेशर करेगा कि चलो बधाई करो, चलो ये मांगो। हम क्यों बधाई मांगे? हम क्यों करें? हम पढ़ेंगे, हम रोजगार करेंगे, हम दुकान खोलेंगे, हम समाज को जागरूक करेंगे कि कल दिन भी तुम्हें इस चीज की दिक्कत आए, जजमान तुम्हें बधाई ना दे तो तुम अपने काम करके, मेहनत करके, जॉब करके तुम खा सकते हो जॉब करके। आज हम इस गुलिस्ता ट्रस्ट को जो बनाए हैं, आज ये न्यू एनजीओ है, इसमें ज्यादा लोग नहीं जुड़ पाए हैं। धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और इस सोच को हम धीरे धीरे इस सोच को बदल पा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप हम इसको पैर रख रहे हैं कि हम कैसे इन चीज़ों को आगे, इस मुहिम को, इस मसाल को कैसे आगे ले जा पाएंगे, कैसे हम आगे आएंगे। हमें पूरी तरीके से किन्नर समुदाय के प्रति और फैमिली और समाज के प्रति हमें आज़ादी नहीं मिली है। हम आज़ाद नहीं है समाज से, परिवार से हम आज़ाद नहीं है। हाँ, मैं अब कह रही हूँ कि अगर से कोई ट्रांस बच्चे को घर से निकाला जाएगा तो मैं उसके शासन से लेकर, सत्ता से लेकर, मैं कानून तक उसके लिए आवाज उठाऊंगी और आप लोग का सहयोग लूंगी। मैं जय हिंद, जय भारत। सलमा जी, आपने किन्नर समुदाय के उपेक्षापूर्ण और तिरस्कृत जीवन के मार्मिक पक्ष को चित्रित किया अपने पूरे वक्तव्य में, और आपका यह संकल्प कि भविष्य में यदि किसी परिवार से ट्रांस चाइल्ड को बाहर करने की कोशिश की तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा, कानूनी स्तर पर और राजनीतिक। मैं चाहती हूँ वाराणसी में भी एक ऐसा आश्रम बने बच्चों का कि उन बच्चों को कुछ दिन तक हम ला के रख सकें, उस बच्चों को हम गाइड कर सकें, पढ़ा सकें कि जो वो उस मुक्त जो मतलब कि एक मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, कि मतलब कि एक गलत रास्ता पकड़ लेना, वो गलत रास्ता ना पकड़ के पढ़े लिखे। अब जैसे कोई बच्चे क्राइम कर रहे हैं, उस बच्चे को बिल्कुल वो सरकार उस पर नजर नहीं डाल रही है कि बच्चे क्राइम कर रहे हैं। एक छोटा ही बच्चा क्राइम करने लगता है। अभी देखिए, आप रोड पे निकल जाइए, अब दिल्ली आइए, बॉम्बे आइए, लखनऊ आइए, तो बच्चे गुब्बारा बेचते हुए दिखेंगे आपको। गुब्बारा ले लीजिए और पेन ले लीजिए। तो ये संवैधानिक तौर से संवैधानिक का ये कानून का उल्लंघन है और शासन प्रशासन का भी उल्लंघन है कि हम उन बच्चों को गाइड करें, उनको चाइल्ड लाइन में लेकर जाएं, उनको पढ़ाएं लिखाएं। नाबालिग बच्चे जो काम करते हैं ये कानूनन अपराध है। तो हम इस अपराध को रोकने के लिए हम इस मुहिम के साथ जुड़कर एक साथ आकर हम इस आवाज को उठाएं कि जो आवाज उठकर वहां तक जाए। और रही, सर ने बोला कि जो राजनीतिक जो मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे, मैं नहीं कहती कि तुम चुनाव मत लड़ो, तुम किसी पॉलिटिकल हिस्से में आप अपना वो हिस्सा मत लो। मैं भी सपा में जाके मैंने सपा पार्टी से मैंने कहा कि आपकी सरकार 2 बार 3 बार उत्तर प्रदेश में रही, आपने किन्नर समुदाय को क्या दिया?
कौन सा अधिकार दिया आपने, कौन सा इनको मुहिम के साथ जोड़ा। तो उन्होंने हमारे सामने, हम 7 किन्नर के साथ गए थे, उन्होंने बनाया एक किन्नर सभा, कहा कि मैं आपको इस किन्नर सभा से जोड़ रहा हूँ, जब मेरी सरकार आएगी तब हम आपके लिए जो भी कहेंगे, या किन्नर आयोग हो या किन्नर वेलफेयर बोर्ड हो, हम आपको बना के आपका इस मुहिम से जोड़ेंगे। मैंने कहा नहीं, हमारे किन्नर समुदाय को अगर से आपको पार्टी की तरफ से आपको टिकट देना है, टिकट देकर आप चुनाव लड़ाएं कि वो भी समाज की सेवा करे, उसको भी मौका मिले। तो हमें अब इन पार्टियों से अब हमें निवेदन, ये पार्टियां हमारी नहीं सुनती है, अब हम भारत निर्वाचन आयोग से निवेदन करते हैं कि इनकी सीट रिजर्वेशन करें और इनको समाज के बीच लाया जाए, इनको चुनाव लड़ाया जाए, इनको राज्यसभा भी भेजा जाए और इनको विधानसभा भेजकर और इस समाज की गरिमाओं को और समाज की भावनाओं को, जो चीजें उनको बचाई जा सकती है और एक अच्छी खासी हिंदुस्तान में अवेयरनेस हो सकती है। मैं अपनी बात को विराम देती हूँ, बस मेरी यही पर। बिल्कुल सही कहा बस एक आपने, मिनट राजनीतिक बीच में रोकना सशक्तिकरण। चाहूंगी। हमारे साथ रुद्र जी हैं, जी। थोड़ा इनकन्वीनियंट हो गए थे हिंदी के वजह से, क्योंकि बहुत थ्रू आउट ही हैज बीन स्टडीड इन सेंट मैरीज एकेडमी व्हिच इज अ कॉन्वेंट स्कूल, so he wished to put forth more feelings of his from this platform. So, and a few of his classmates have also requested that we would love to listen to a national anthem as well. तो रुद्र आप सुन भी रहे हैं और देख भी पा रहे हैं हम आपको। सर मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप रुद्र को बुला लीजिए। हाँ, जैसा सलमा जी ने कहा कि उन राजनीतिक अधिकारों की एक दिशा में आगे बढ़ने का जो प्रयत्न है राजनीतिक दलों के माध्यम से, तो आपका ये प्रयास बहुत अच्छा है कि आप उन दलों को भी सेंसिटाइज कर रहे हैं। राजनीतिक नेतृत्व को इस दृष्टि से तैयार करना, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी तपस्या है। एक ऐसा समाज जहां जन्म और विवाह के समय किन्नरों के आशीर्वाद की याचना की जाती है, वह समाज इन्हें इस प्रकार तिरस्कृत निगाहों से देख रहा है, ये बड़ी त्रासदी समाज की है। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में इसमें कहीं सुधार आएगा। और अब जैसा डॉक्टर उषा ने कहा, मैं एक बार पुनः आमंत्रित कर रहा हूँ रुद्र प्रताप को कि वे आए और अपनी बात जिस भाषा में वो अपने आप को सहज महसूस करते हैं उसमें कहें और कुछ राष्ट्रों के राष्ट्रगीत की कुछ पंक्तियां सुना सकें, तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा। रुद्र प्रताप सिंह। Good evening, everyone. This is Rup Pratap Singh, and I have learned more than 25 countries' national anthems in their native language and their accents. Plus, I have received Rashtriya Gaurav Samman by the Government of India and also represented India in Dubai Expo 2022. I also got crowned for my speech on gender equality on Dubai Expo Portal Ground. I have been an LGBTQ activist from the starting, and I was always inquisitive to know about why people take stereotypes as a really positive thing. Since I belong to a Rajput family, and I have been restricted to guns and swords since my childhood. So being a boy who is literally more interested in makeups and arts. So from that time onwards, I was really inquisitive to know that why people love stereotypes and want stereotypes to continue even in this century. Apart from that, I wear makeup to look and feel confident. It's not like I love doing makeup to just hide my flaws. It's not like that. It makes me fierce, it makes me feel confident, and literally makes me feel who I am. My pronouns are he, him, his. And apart from that, I know 25 countries' national anthem currently, and now I'll be going to speak on, I'm going to say national anthem of France. I would like you all to put your hand on your hearts. Allons fondre l'impak le jour de guave t'activer. Fontelou de la tyrannie, les tondats sont longs d'élevés.
Litunda som långt äldre vi, ontom de foda av ni companions, nu de fördosse så laj, il gev da viska wanda vras, legum gel la fisen lo companions, os avla citoyens, formescos batalhões, Marson, Marson, Bansangam pure, Abga Palacions. Thank you so much, everyone. Happy Pride Month. May this Pride Month continue the whole year. Thank you. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रस्तुति के लिए और आपके विचारों के लिए। और अब जैसा कि डॉक्टर उषा ने कहा था, जी प्रोफेसर रत्नम हमारे साथ हैं। मुझे लगता है वो क्विट कर गए हैं शायद। प्रोफेसर रत्नम हमारे साथ हैं या नहीं? चलिए, जब तक वो यदि पुनः ज्वाइन करते हैं तो सब आमंत्रित करेंगे। उसके पहले मैं आमंत्रित करता हूं, एक शोधार्थी हमारे साथ हैं, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से वो पीएचडी कर रही हैं पॉलिटिकल साइंस में, जिज्ञासा राघव। तो उनसे मेरा अनुरोध है कि वे इस अवसर पर, इस मुद्दे पर एक शोधार्थी की दृष्टि से जो कुछ उनका चिंतन है या जो शोध है वो हमारे सामने रखें। जिज्ञासा राघव। मेरे साथ जुड़े हुए सभी पैनलिस्ट को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मुझे एक अवसर दिया यहाँ पर बोलने के लिए। तो मैंने जो अब तक ऑब्जर्व किया, जो सब लोगों ने बोला, उसका अगर मैं एक मोटा मोटा आइडिया लगाती हूँ तो कहीं ना कहीं लगभग हमने हर पॉइंट्स को छुआ है। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूँ तो वो प्राइड मूवमेंट की हिस्ट्री से लेके वो इंक्लूसिव सोसाइटी तक गए हैं। उसके बाद शोभिता पाटिल जी मैम ने बात करा है उनके सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष पर। सोसाइटी में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या है ट्रांसजेंडर पूरे एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए, और प्रैक्टिकली चीजें क्या होती हैं, उन दोनों ही चीजों में बहुत अंतर है। ऐसे ही मैं सलमा जी की बात करूं तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक एक्सेप्टेंस, सोसाइटी के एक्सेप्टेंस को हमारे सामने रखा है कि किस तरीके से उनको स्वीकार न करने के वजह से वो किस तरीके के आइडेंटिटी क्राइसिस को फील करते हैं, मतलब उस वजह से वो कितने उत्पीड़ित होते हैं, इस नजरिए को उन्होंने हमारे सामने रखा है। तो मतलब जो मैंने सुना, मैं उसके तौर पर अगर बात करूं तो मैं बोल सकती हूँ कि ये सब ना बस एक माइंडसेट का खेल है। आई मीन मैं बात करूं, अगर मैं लीगल एस्पेक्ट पे जाती हूँ तो 1861 टू 2022 तक हम कितने पॉलिटिकल राइट, लीगल राइट, सिविल राइट, इन सब पे बात कर लें, लेकिन क्या उसके आगे क्या 2018 के बाद, क्या 377 हट जाने के बाद या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को उनके पॉलिटिकल राइट्स मिल जाने के बाद उनका शोषण होना बंद हो गया है क्या? ये सच में मतलब मुझे तो नहीं लगता कहीं हद तक भी कि ये केवल एक पॉलिटिकल और लीगल राइट वाली बात आ जाती है। मैं कहीं ना कहीं अब भी इसको सोशल माइंडसेट वाला सीन में समझती हूँ। मतलब इतना ज्यादा प्रॉब्लम है सोसाइटी के माइंडसेट में। अगर हम कहीं ना कहीं एक माइंडसेट को चेंज कर पाए तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस तरीके के वेबिनार्स, सेमिनार्स कराने की या इस तरीके से प्राइड मंथ्स करने की। मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दे ऐसे हैं कि इन पर बात भी करा जाए। ये बहुत कॉमन चीज है। अगर कोई मेल फीमेल हो सकता है तो कोई ट्रांसजेंडर हो सकता है, बाइसेक्सुअल हो सकता है, गे हो सकता है, लेस्बियन हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। ये किसी की भी अपनी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस है और जो चाहे वो हो सकता है। ये हम कोई नहीं होते बताने वाले कि अगर आप इस बाइनरी में फिट नहीं बैठते हो तो आप कोई नहीं हो। तो सारा खेल जो सोशल स्पेयर वाला है मैं उस पर ही ज्यादा जोर दूं, उस पर ही मैं ज्यादा जोर दूंगी। सबसे पहले जो मैं रखूंगी वो सबसे पहला जो मुद्दा है हमारे सोसाइटी के एक्सेप्टेंस का है। हमारी सोसाइटी ने कभी भी आज तक भी केवल हम एक कहने को हम एक पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में है जहाँ पे हम बहुत इजी गोइंग चीजें बताते हैं, लेकिन ये बहुत हद तक, बल्कि इनफैक्ट मैं ये बोलूंगी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी कहीं ना कहीं पूरी एलजीबीटी कम्युनिटी जिज्ञासा आपने माइक म्यूट कर लिया बेटा, माइक गलती से म्यूट हो चुका है आपका। ओके मैम, बीच में मुझे लगता है मे बी नेटवर्क इशू हो रहा है। ओके
तो मुझे लगता है कि सोसाइटी के अगर हम नजरिए से देखें तो सबसे ज्यादा लीगल फ्रेमवर्क में ना फंस के, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में ना फंस के हम सोसाइटी वाले फ्रेमवर्क में आते हैं। तो हमें एक्सेप्टेंस, हमें उस सोसाइटी को एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। हमें उस सोसाइटी की आइडेंटिटी क्राइसिस को कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम अपने आप को ह्यूमन बीइंग समझते हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें उन लोगों को मौका देना पड़ेगा। हमें उनकी ओरिएंटेशन क्राइसिस को समझना पड़ेगा, उनके जेंडर क्राइसिस को समझना पड़ेगा, उनकी उनकी जो बायोलॉजिकल क्राइसिस है, उनका साइकोलॉजिकल थ्रेट है, उनके लिए हमें एक माहौल तैयार करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत जरूरी नहीं है कि आप एक बहुत टेक्निकल टर्म्स लेके आए, आप बहुत उनके लीगल, पॉलिटिकल, सिविल राइट्स पे बात करें, आप उनकी इकोनॉमिक डायमेंशंस पर बात करें। नहीं, आप केवल माहौल तैयार करिए। इस सोसाइटी के लिए केवल माहौल तैयार करना ही बहुत चैलेंजिंग है। जब तक ये माहौल तैयार नहीं होगा, इस पर बात नहीं होगी, कोई कोई इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। और मैं एज ए रिसर्चर मैं आपको बताती हूँ, जब एमफिल के दौरान मैंने जब अपने घर में बताया कि मैं ट्रांसजेंडर के ऊपर काम कर रही हूँ, तो मेरी फैमिली में भी, बस मेरी फैमिली में ये पता था ट्रांसजेंडर बस किन्नर होते हैं। और मतलब मेरी मम्मी को तो ट्रांसजेंडर का भी नहीं पता था कि क्या होता है, ये कौन है, ये कैसा काम कर रही है। तो मैंने उनको बताया, तो बोलते हैं ये तो होते हैं। मैंने कि हाँ होते हैं, तो हम बात कब करते हैं इन पर। मेरे साथ मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैं 9th क्लास में जब थी तो मेरे सामने एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग आए थे। आई थिंक कुछ बधाई बधाई का कुछ वो था, तो वो लेने आए थे। मैंने अपनी फैमिली में पूछा कि ये ऐसे क्यों हैं, ये ऐसे ताली बजा के क्यों मांग रहे हैं, और ये कौन लोग हैं। मुझे नहीं पता था तब तक कि ये क्या हैं, क्या काम करते हैं, कौन लोग हैं, ये हमसे अलग क्यों दिख रहे हैं, हम तो ऐसे नहीं है, ये ऐसे क्यों, आप सब लोग हंसी क्यों बना रहे हैं। लिटरली मेरी फैमिली में लोग हंस रहे थे, आसपास के जो लोग हैं उन पे हंस रहे थे। तो वो कहीं ना कहीं वो जो मेमोरी है मेरी बचपन वाली है कि यार ये लोग ऐसा क्यों है। 12th में बड़ी, ग्रेजुएशन में आके और ज्यादा मैं क्यूरियस हुई इन चीजों को लेके कि यार ये क्या है सोसाइटी में, ये मतलब अलग से लोग क्यों दिखते हैं। फिर मैंने एमफिल में इसको अपना कहीं ना कहीं मेरे गाइड ने मुझे सजेस्ट किया, और मेरा कहीं ना कहीं मेरी क्यूरियोसिटी थी कि मैं पूरी सेक्सुअल माइनॉरिटीज के बारे में जानूं। और मुझे लगता है कि रिसर्च, एक रिसर्चर के लिए कुछ अलग जानना रिसर्च से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो एक अलग अलग तरीके की चीजें निकल के आती हैं जब हम इस तरीके से बात करते हैं। आप माहौल तैयार करिए, और इस तरीके के वेबिनार, सेमिनार, जो भी कुछ हो सकता है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है होना। और मैं उषा मैम, मतलब मैं तो चाहूंगी कि इस तरीके के वेबिनार्स होते रहें, क्योंकि सेक्सुअल माइनॉरिटीज से बात करना ऐसा है जैसे कि मतलब एक तरीके से ऑक्सीजन आप मान लीजिए, क्योंकि इस तरीके से एक्सप्लॉइट हो रही है ये सोसाइटी। आप तो गांव भूल जाइए, आप कस्बे भूल जाइए, आप बड़े बड़े शहरों में जाकर देखिए, कोई बात करने को तैयार नहीं है। मैं अपने 2 पर्सनल एक्सपीरियंस अगर बताऊं, मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, 2 फ्रेंड्स कपल हैं जो, जिनको मैं बुला नहीं पाई इस वेबिनार में। मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन वो आ नहीं पाए। उनका मेन मुद्दा बस यही था कि उनको लगता है कि वो लोगों के बीच में आएंगे तो लोग उनका मजाक बनाएंगे। तो ये ना, अब मतलब मुझे बहुत शर्म महसूस हुई। मैंने उनको बोला कि आपकी आइडेंटिटी को हर तरीके से छुपा के रखा जाएगा, और आपको लगता है कि आपकी आइडेंटिटी सबके सामने लायक नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो उनको इस तरीके से उनका व्यवहार रहा था, तो ये बहुत गलत था। हमें एक माहौल तो तैयार करना पड़ेगा। आप बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप बहुत इंटेलेक्चुअल लोगों को बुलाइए बात करने के लिए, या आप बहुत लीगल, इस तरीके से माहौल, एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा। वो प्लेटफॉर्म आप कैसे भी तैयार करिए, आप इंटेलेक्चुअली वे में आप बातों को जितना रख सकते हैं सामने, उससे उससे ज्यादा सोसाइटी को अवेयर किया जा सकता है, क्योंकि सोसाइटी अवेयर नहीं है। सोसाइटी में आप पूरा LGBTQIA क्लब तो छोड़ दीजिए, लोग ट्रांसजेंडर्स के बारे में भी ठीक से नहीं जानते। ये बहुत बड़ा इशू है। लेकिन हमें सीरियस तो होना पड़ेगा, ये ऐसे तो नहीं हो सकता है। और मुझे लगता है कि अगर ये वेबिनार सोशल मीडिया और ट्रांसजेंडर और सॉरी पूरी LGBTQI कम्युनिटी के ऊपर है, तो हमें थोड़ा बहुत तो उस पर डिस्कशन करना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि मैंने तो ये बहुत पर्सनली इसको फील किया है। मैं एक ग्लोबल विलेज का अगर हिस्सा बोलूं तो सोशल मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एक अमेरिका का प्रेसिडेंट प्राइड परेड के लिए ट्वीट करता है। एक ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर
ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ऊपर डिस्कशन कर रहा है, हमारी बड़ी बड़ी पार्टीज के लीडर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बात कर रहे हैं, तो इसमें ये सोशल मीडिया इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि आप सोच नहीं सकते। इसलिए जितनी भी सेक्सुअल माइनॉरिटीज हैं उनके उनसे जुड़ने वाले जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और आम लोग सोशल मीडिया के थ्रू अपनी आवाज को जितना ज्यादा बुलंद करेंगे, लोगों के बीच में उतनी ही उस आवाज का माहौल तैयार होगा। हमारी सोसाइटी में माहौल नहीं है, दिक्कत यही है। और जब तक ये माहौल तैयार नहीं होगा, इन प्रॉब्लम्स पे बात नहीं होगी। यहाँ पे तो बेसिक चीजें नहीं पता, लोग बेसिक जेंडर और सेक्स के बीच में ही कंफ्यूज हैं। लोग समझते हैं कि जेंडर ही मेल और फीमेल है, वो नहीं जानते ये सोशल कंस्ट्रक्टेड थ्योरीज हैं जो जिसमें वो फंसे हुए हैं। सेक्स को केवल वो मेल फीमेल के बीच होने वाली इंटीमेसी तक लिमिटेड करते हैं, जो कि नहीं है। सेक्स किसी मेल का ऑर्गन या किसी फीमेल का ऑर्गन है, और उससे अलग बाइनरीज के अलावा भी अगर कोई भी ओरिएंटेशन है वो सेक्स है। लोगों के बीच में इतनी बेसिक नॉलेज का एटमॉस्फेयर जब तक नहीं आएगा, लोग कंफ्यूज ही रहेंगे। और ये कंफ्यूजन दूर करने की जिम्मेदारी हम जैसे आप जैसे लोगों की है, और एक एटमॉस्फेयर तैयार करने की जिम्मेदारी हम लोगों की। हम ऐसे एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। हमें कोई भी अधिकार नहीं है किसी भी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस से। हमसे अलग जो लोग हैं, हम उनके सेक्सुअल प्रेफरेंसेस पे कुछ नहीं बोल सकते, और हमें कोई अधिकार नहीं है। जैसे कोई मेल फीमेल है, ऐसे ही कोई गे है, लेस्बियन है, बाइसेक्सुअल है, क्वेयर है, जो कुछ है वो उनका अपना पर्सनल है, और हमें कोई अधिकार नहीं बनता कि हम उस पर बोलें। तो मुझे लगता है कि मेरा जो बोलना था, मुझे बस यही बोलना है मैम। और ये चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जिज्ञासा। आपने एक शोधार्थी के रूप में इस पूरे विषय के अनेक पक्षों पर अपनी टिप्पणियां की, और मुझे लगता है कि आप जैसे शोधार्थी जब इन विषयों पर काम करेंगे तो और अधिक परतें खुलेंगी। मैं पिछले कुछ वर्षों में कुछ विश्वविद्यालयों में जब गया मास कम्युनिकेशन के, तो वहाँ मैंने देखा कि कुछ ग्रुप्स ने, जैसे अलीगढ़ का मुझे ध्यान है, लखनऊ का मुझे ध्यान है, कि इस तरह के वर्क पर छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं। तो कहीं इस तरह के जो वर्ग के प्रति हमारा जो यूथ है, कहीं मुझे लग रहा है कि उत्सुक हो रहा है, उसके मन में एक जिज्ञासा का भाव पैदा हो रहा है कि हम किस तरह से उस वर्ग की समस्याओं को, इनकी आशा आकांक्षाओं, उत्कंठाओं को महसूस करें, और जो भी उनका माध्यम है। आप एक शोधार्थी के रूप में काम कर रहे हैं, वो एक फिल्म मीडिया के माध्यम से काम कर रहे हैं, तो बाकायदा उन्होंने इनको इंटरव्यूज किया और उस पर एक डॉक्यूमेंट्रीज बना करके उस वर्ग की चुनौतियों को वो सामने लेकर के आए। ये सही है कि अभी तक लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। समाज का पढ़ा लिखा जो तबका है वो भी इन चीजों से अनभिज्ञ है। ये लंबी लड़ाई है, और इस तरह के जो छोटे छोटे आयोजन है, तो वही हम 1861 से 2022 में आ गए और हम बिल्कुल अवेयर नहीं है। दिस इज वेरी शेमफुल फॉर अस। मुझे लगता है कि जिस देश में आजादी के 75 साल बाद स्वच्छता अभियान चलाने पड़ते हो, ये समझाना पड़ता हो कि खाना खाने के पहले हाथ को धोइए, तो हम सोच सकते हैं कि सूचना की कितनी गहरी खाई है वहां पर। अभी तक हम लोग पूरे साक्षर नहीं है। तो मुझे लगता है एक बहुत लंबी लड़ाई है, इसके लिए एक बहुत व्यापक व्यूह रचना हमको तैयार करनी होगी, तभी जाकर के। अभी तो दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां उनको वो इक्वलिटी का राइट भी नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि एक वैश्विक समस्या है, और लेकिन फिर भी हमारे देश में जो हमारे जुडिशरी है उसने सही समय पर कदम उठाया, अधिकार दिए। अब धीरे धीरे ये बदलाव जो आज बात की गई, पाठ्यक्रम में बदलाव की, सिलेबस में जोड़ने की, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण की, ये कुछ ऐसे प्रयास हैं जो आने वाले समय में शायद कुछ बदलाव की ओर संकेत कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के हमारे जो वक्ता थे उनके वक्तव्य तो पूरे होते हैं। अब मैं डॉक्टर उषा सानी से अनुरोध करूंगा कि कोई प्रश्नोत्तर का जो हमारा ये सत्र है अगले 10-15 मिनट के लिए, उसको वो संचालित करें। यदि कोई प्रश्न है तो हमारे जो एक्सपर्ट उपस्थित हैं यहाँ, वो उनकी शंकाओं का समाधान करेंगे। Thank you, sir. I can see still a lot of people are there with us. बहुत सारे हैं अभी भी, और of course text box में तो लिखते ही रह रहे हैं सभी, कुछ ना कुछ मैसेजेस हम लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। बट अगर कोई भी कोई हमारी रिसर्च स्कॉलर या कोई हमारे स्टूडेंट्स या जो भी हमें सुन रहे हैं मीडिया फ्रेटर्निटी से भी हैं, अगर कोई भी मन में आपके कोई क्यूरियोसिटी है, कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ आप जानना चाहते हैं या कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हाथ उठा सकते हैं। और अगर वो सुविधा आप नहीं समझ पा रहे हैं फोन पर तकनीकी व्यवधान की वजह से,
तो आप अपना वीडियो ऑन करके, माइक ऑन करके अपना परिचय देकर अपनी बात पूछ सकते हैं। ये सब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम ये जरूर चाहेंगे कि आप अपना वीडियो ऑन कर लें। ओके, Anshika Garg is there. What do you think about LGBT Hindu God's role in changing society mindsets? We have मैं उत्तर शमीबा- प्रदेश सलमा चौधरी। हाँ सलमा जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रशासन हमारे बारे में कभी कोई बात क्यों नहीं करती। सलमा जी, प्रशासन एक हमारे साइड पर बारे में थोड़ा कभी होना कोई पड़ेगा बातें क्यों आपको। नहीं, कोई अवेयरनेस क्यों नहीं रखते। जैसे वो कभी कोई कुछ हो जाता है तो मतलब कि मेल फीमेल को बुलाया जाता है और मेल फीमेल की ज़्यादा उसमें सुनवाई होती है, मगर प्रशासन हमारी कुछ हद तक हमारी सुनवाई नहीं कर पाती है। प्रशासन इस तरीके से हम लोगों से बोलते हैं कि आप कहाँ आ गए, तुमने क्या किया, तुम क्यों आए, तुमने सारा प्रशासन पहले मेरे से पूछता है क्या ऐसे ऐसे क्या, वहाँ मेरी एप्लीकेशन मेरी FIR दर्ज नहीं करती प्रशासन। हाँ सलमा जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, समझ रही हूँ, आप अपनी एक व्यथा बता रही हैं और शायद इस वक्त वो किसी परेशानी से ही जूझ रही हैं। एक प्राइड परेड चल रही थी वाराणसी में, जिसे वो लीड कर रही थी, वहीं पर कुछ बात हुई है जिसके कारण उनको वापस वहां जाना पड़ा है। हमारे बीच शमीबा जी, आप हमें सुन पा रही हैं? स्वास्तिक साहनी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं शुभम? सुन पा रही हूँ, हाँ बोलिए। हाँ शमीबा जी, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारे पास आया है, ये पूछा है, इसमें इस क्वेश्चन के थ्रू अंशिका गर्ग हैं, ये पूछ रही हैं, आप हाँ। LGBT हिंदू गॉड्स के रोल में अगर उनको देखा जाए तो आप क्या समझते हैं उसके बारे में, और उससे हम सोसाइटी का माइंडसेट कैसे चेंज कर सकते हैं? हिंदू कहना गॉड है? के रूप हिंदू गॉड्स के रूप में कैसे देखा जाए और हम उसका हाँ जी, बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए, फिर से मुझे जरा सवाल को जरा आप बोल सकते हैं? What do you think about LGBT Hindu God's role in changing society mindsets? Because ये हम सभी जानते हैं कि ये सच्चाइयां हैं कि हम हिंदुइज्म में तो ये बिलीफ है, तो उन गॉड्स को जिनको हम LGBT कम्युनिटी में रखते हैं, उनके अगर उनको हम स्मरण करें और उनके विषय में जाने, तो हम क्या सोसाइटी में चेंजेस नहीं ला सकते हैं? इस पर आप क्या बोलना चाहेंगी? कोई भी, जो भी हमारे स्पीकर्स हैं उनमें से कोई भी, रुद्र अगर आप भी कुछ बोलना चाहें तो बिल्कुल बोल सकते हैं, बता दीजिएगा, ठीक है? हाँ जी शमीबा जी। हाँ, एक तो सबसे बड़ी बात कि जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है और गॉडेस और गॉड्स का जो ढांचा रखा गया है, या फिर जिन गॉड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हिंदू माइथोलॉजी में यक्ष, किन्नरा, गंधर्वा, ये जो आते हैं ये बिलोंग टू कम्युनिटीज से आते हैं, लेकिन उनको किस जगह पर यहाँ के रिचुअल स्ट्रक्चर ने रखा है, और रिचुअल स्ट्रक्चर ने रखते हुए भी, जैसे महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में आराधी और जोगती, यहाँ पर एक जो देव है, जो खंडो शंकर जी के अवतार कहलाए जाते हैं, उन्हें खंडोबा कहा जाता है। तो उनके जो भक्त होते हैं, तो वहां पर जो बच्चे जिनको आइडेंटिटी होती है, और फिर ऐसा कहा जाता है कि इनके ऊपर माता का साया है या फिर उनके ऊपर भगवान की छवि है, तो उन्हें अभी भगवान को छोड़ देना चाहिए। या फिर आप सभी ने सुना होगा कि यल्लम्मा जो महाराष्ट्र के, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर आते हैं, तो वहां पर वो बच्चों देवी को छोड़ दिए जाते हैं। तो रिचुअल स्ट्रक्चर में भी मुझे बताइए कि रिप्रेजेंट करते वक्त किस तरीके से किया जाए, और रिचुअल स्ट्रक्चर में जिनको किन्नर कहा गया है, यक्ष कहा गया है, नाड़ कहा गया है, जो कि जिन देवताओं के रेफरेंस दिए जाते हैं, अगर हम हिंदू माइथोलॉजी के रेफरेंसेस लेते हैं तो अर्जुन का बृहन्नड़ा एक बाइनरी स्टेज में आता है। महाराष्ट्र में नाथ संप्रदाय है, उसमें एक नवराथ करके है, शिखंडिनी करके है। महाभारत के पूर्वज जो थे उनमें एक इलेश्वरी करके देवी की पूजा की जाती थी, तो वो 15 दिन पुरुष के रूप में और 15 दिन स्त्री के रूप में रहती थी, और फिर उस तरीके से उसको प्रेजेंट, लेकिन उनको किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, तो वो प्रेजेंट जो किया जाता है वो एक निचले ढांचे में, जहाँ की अब्यूजमेंट कायम रखा जा सके। तो मुझे लगता है कि देवताओं के रूप में रिप्रेजेंट करने की कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद कोई जरूरत नहीं है। हमारी लड़ाई है ह्यूमन बीइंग, देवता बनाकर क्या करेंगे? तो एक चौखट पर हमेशा, अभी भी आप किसी पुराने मंदिर में या टेम्पल में जाते हो
तो आपको दाएं और बाएं में चौकट में जहां पर पैर रखते हैं लोग, तो दाएं और बाईं तरफ जो प्रतिमाएं बनी होती है ना छोटी छोटी, एक बड़ी तोंद निकला हुआ, उसका एक हाथ नीचे है, एक पैर नीचे है और पैर पसार कर बैठा है, तो उसे यक्ष और किन्नर ही कहा जाता है। तो उनकी जगह उस स्ट्रक्चर में अगर पैर रखने की जगह पर है रिचुअल्स में, तो वहां पर जगह देने की मुझे लगता कोई जरूरत नहीं है। हम कॉन्स्टिट्यूशनल वे की तरफ जाते हैं, तो हमारी लड़ाई इक्विटी टू इक्विलिटी, हाँ, इस तरीके से हमें अगर जाना है तो उस ढांचे को समझना जरूरी है। जैसे अभी जिज्ञासा जी ने बात रखी कि एज अ रिसर्चर किस तरीके से बाइनरी क्या है, LGBTIQ का हार्मोनल एक्सटेंस क्या है और उसका फिजिकल साइंस क्या है, वो ये सारी बातें मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए सामने रखना जरूरी है। राजस्थान की हमारी उत्तर प्रदेश की हमारी एक ट्रांस सहेली ने भी बात करते हुए रखा कि ये सिलेबस में इंक्लूड करना चाहिए। मुझे लगता है कि आठवीं में हमारी एक उम्र होती है 14-15 साल की, हमारी जेंडर आइडेंटिटी क्लियरिफाई होने लग जाती है। हाँ, यानी पप्पू को पप्पी पसंद आती है और पप्पी को पप्पू पसंद आने लग जाता है। वैसे वो जो आइडेंटिटी का जो दौर है, उसी आइडेंटिटी के दौर में मुझे लगता है कि साइंस की बुक में एक शरीर शास्त्र भी होना चाहिए और उससे सिलेबस में ये ऐड करना चाहिए कि जेंडर आइडेंटिटी में हार्मोन्स किस तरीके से एक्टिवेट होते हैं और हार्मोन्स का एक्टिवेट होना और फिर LGBTIQ तरफ आना। हम LGBTIQ की मूवमेंट को चलाते वक्त हेटेरोसेक्सुअल कम्युनिटी को हेट नहीं करना चाहते और ना ही करते हैं। हालांकि हम उनको हमारे साथ में, मैं हमेशा बात करते वक्त रखती हूँ बात कि बाबा आप लोग है ना एक ऊपर की दीवार पर खड़े हो जो कि आपको सोशल स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ने दी है। अब आप एक काम कीजिए, आप रस्सी छोड़िए, हम एक एक गठान लगाते हुए हमारी लड़ाई लड़ते लड़ते ऊपर चढ़ते आएंगे और जब जरूरत पड़ेगी हम आपको आवाज दे देंगे, रस्सी खींच लेना, हाथ में हाथ लेकर लड़ाई करेंगे और अपने आजादी की तरफ जाएंगे। तो मुझे लगता है ये करना बहुत जरूरी है। बहुत विस्तार से आपने इस बात को समझाया। मुझे लगता है कि वो जो जिज्ञासा उनकी थी वो सॉर्ट आउट हो गई होगी। हमारे साथ मनीषा सिंह जुड़ी हुई हैं। इन्होंने ये बात बोली है, ये वैसे सलमा जी और रामकली जी दोनों ही इस बात को बता चुके हैं कि जो डिफरेंसेस होते हैं, जो जिस तरह से फील किया जाता है कि हाँ ट्रांसजेंडर है तो उनको उस तरह से ट्रीट करना है कि वो बाकी कम्युनिटी के साथ में नहीं है, तो दिस इज देयर एवरीवेयर मनीषा जी, गवर्नमेंट हो या हम लोग, एंड बेसिकली इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द सोसाइटी। Who is responsible for that? We are responsible. जिस दिन हम ये एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे कि हम सब एक ही हैं, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। So probably we need not to discuss this particular question more. रुद्र, अगर आप इसके बारे में फिर भी कुछ बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो, बट मुझे लग नहीं रहा यहाँ पर उसकी नीड है। Do you want to, रुद्र? You wish to, Chair? She's asking about what are the differences, like how the government treats the transgenders. Is there any difference and how it can be sorted out? Do you want to speak something about that? Again, volume problem, beta. Can't listen to you. No, it's at my end only. Yes, कोई भी नहीं सुन पा रहे हैं. Volume is not there. Try. ये सारे लोग भी हैं, इसलिए मैं बाद में बात करूंगी तो वो थोड़ा मुझे लगता है। हेलो, बोलिए। हाँ, नहीं, बाकी सारे लोग भी हैं लेकिन मैं ही बार बात करूंगी तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। लेकिन अभी जो आपने सवाल किया है कि लीगल एसेट्स को लेकर हम बात करें कि कानूनी लड़ाई किस तरीके से होनी चाहिए या कानून में कौन से प्रावधानों के लिए हमें बात करनी चाहिए, सबसे बड़ी बात तो मुझे लगता है कि बातें करने की जरूरत नहीं है। नालसा जजमेंट 168 पेज का इतना बड़ा बल्क वो जजमेंट है। नालसा जजमेंट में इतनी सारी बातें कही गई है कि उन सारी बातों को हर पैरा को लेकर अगर आप उसका डिस्क्राइब करोगे या फिर उसको आप डिस्क्रिप्टिव करोगे, रिसर्च अप्लाई टू रिसर्च मेथोडोलॉजी इन लीगल लैंग्वेज के साथ, तो मुझे लगता है कि एक काफी यानी 5-6 खंडों में वो विभाजित करना पड़ेगा। लेकिन एक तो हमारी यहाँ की सरकार की मंशा नहीं है, एक तो वो केंद्र में हो या फिर राज्य में भिन्न
राज्यों में जो राज्य सरकारें हैं, क्योंकि उनके ऊपर उनको लगता ही नहीं है कि लैंगिक अल्पसंख्याक समुदाय है और उनके सवालों पर बात होनी चाहिए। जैसे मैंने मेरी बात पहले दौर पर रखते हुए कहा कि बहुत सारी बातें सिंपथाइजेशन के तौर पर हो रही है। जैसे अभी महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन के दरमियान 1500 रुपया मंथली डाल दिया था ट्रांस कम्युनिटी के खातों पर। तो मैंने कहा था कि 1500 रुपया मंथली डालने से अच्छा है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को कुछ स्किल बेस्ड एजुकेशन दो, जो कि उनके बीच में स्किल्स है, तो वो स्किल्स को अपने डेवलप कर सके और खुद का बिजनेस खोल सके। जैसे आप जानते हो कि होल एलजीबीटीआई कम्युनिटी का एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो ब्यूटी आर्टिस्ट बनना, ब्यूटिशियंस बनना चाहते हैं, उनको ड्रेस डिजाइनर्स बनना पसंद होता है, उनको अलग अलग तरीके, उनको सिलाई कढ़ाई बुनाई, हाँ, जो कि पेट्रियार्की ने तय किया है कि औरतों ने ये करना चाहिए, तो मेरे बीच की औरत को भी हालांकि यही लगेगा ना कि ये मैं करती हूँ और मुझे ये करना है, तो ये मेरे कमाई का रास्ता भी बन सकता है। ये एक बात, स्किल बेस्ड एजुकेशन पर फोकस करना। सेकेंडरी राइट्स की बात अगर करें तो माइनॉरिटी, आज जहां तक कि मेरे पास देश भर का आंकड़ा है कि आज पूरे देश में 42 लाख इतने ट्रांसजेंडर है। हाँ, 42 लाख, ये कम आंकड़ा नहीं है। जहाँ की 65 लाख पारसी है, तो पारसियों के बाद में सबसे ज्यादा माइनॉरिटी वाले हम ही आते हैं। हाँ, एलजीबीटीआई में से अगर गेट्स की बात करें तो आज देश में ओपन आंकड़ा जो है, यानी पूरा एलजीबीटीआई का ओपन आंकड़ा अगर आप लेते हैं तो टोटल पॉपुलेशन के 0.3% इतना आता है, यानी लगभग 10 करोड़ लोग ये लैंगिक अल्पसंख्यक है। ये आंकड़ा कम नहीं होता है। तो इस बात को लेकर यहाँ की केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक इस बात को लेकर बात नहीं करते हैं, ना कि उनके दिमाग में कोई पॉलिसीज है, ना तो प्रोटेक्शन लॉ है, ना तो सर्वाइवल लॉज है, जो कि यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल वे के हिसाब से अगर हम देखें तो अन्न वस्त्र निवारा आरोग्य और शिक्षा ये देना या ये मुहैया कराना यहाँ की सरकारों का काम है, जो कि नागरिक होते हैं। और हमारी नागरिकता को अगर हम कहें तो हमारी नागरिकता को हो गए 7 साल। तो इन 7 सालों में हमें क्या मिला है? तो एक रेशन कार्ड मिला है अभी, और आधार कार्ड का अपडेशन हम ट्रांस करवा के कर सकते हैं, या फिर बाइनरी या नॉन बाइनरी करवा सकते हैं। थर्ड में अगर होता है तो हमें क्या मिलता है? तो अभी 1500 रुपया या फिर अभी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। तो ये बातें पूरी नहीं है। ये बातें पूरी करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि हमें जो लोग हैं, जो हमें भी कुछ तबका है जो काम करता है, जो पढ़े लिखे हैं, जिनको लगता है कि हाँ हम हमारे सवालों को लेकर रुझान कर सकते हैं, पहल कर सकते हैं, जूझ सकते हैं, तो ऐसे लोग जो बार बार, क्योंकि अभी मैं आपको बोलूं सेम सेक्स मैरिज को लेकर पूरे देश में जो बात चल रही है, जो पहला पिटीशन उसका दाखिल हुआ, तो उस पिटीशन के बाद में पूरे देश भर में अगर एक जांच की जाए, जो कुछ एनजीओ के जरिए मेरे पास डाटा है, तो उस डाटा में पूरे देश में आज के वक्त में कम से कम 40,000 अलग अलग बातों को लेकर, जो कि LGBTIQ रिलेटेड बातें हैं, ऐसी 40,000 पिटीशंस पड़ी है जो कि अनसुनी है। न्याय व्यवस्था को इस बात का लेना देना नहीं है, राज्य व्यवस्था को इस बात का लेना देना नहीं है, मीडिया इस बात को सेंटर्ड नहीं करती है। तो नेशनलाइज न्यूज़पेपर में इतना छोटा सा कॉलम होता है जो 15 पंक्तियों वाला, क्योंकि मैं खुद मीडिया सेक्टर में काम करती हूँ, 15 पंक्तियों वाली न्यूज, यानी आप जितना एक हाथ अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आता है ना कि शादी के लिए इश्तिहार, लड़का काला है, गोरा है, या फिर क्या कमाता है, माँ बाप कह रहे थे, और फिर उसका गांव कुल और गोत्र कौन सा है, जितना आता है उतना ही। ये महज इतना मायने नहीं रखता। बहुत सारी बातें हैं जिन सारी बातों को लेकर पहल होना बहुत जरूरी है। और इस लीगल एसेट को लेकर लगता है मुझे इन सारी बातों को लेकर पहली लड़ाई, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन वे से जाते हैं तो हमारे नागरिक अधिकार की लड़ाई है। नागरिक अधिकार के बाद है हमारे जीवन यापन के सवालों को लेकर, जो सामाजिक, जैसे अभी जिज्ञासा जी ने बात कहा कि सामाजिक अवधारणाओं को बदलना बहुत जरूरी है, उसको लेकर क्योंकि हम देखते हैं कि कानून आता है तो कानून को लेकर बड़ी बड़ी स्वच्छ भारत अभियान के लिए बात अभी हुई कि रिक्शा चलती थी कि कचरा वाला, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो वैसे हमें लगता है कि हमें भी एक अभियान चलाना पड़ेगा कि दिमाग से कचरा निकालो, ये भी इंसान है, हाँ, कि भाई ये भी आया है इंसान, अपने दिमाग से कचरा निकाल और दिल में जरा ये बात डाल।
तो ये सारी बातें भी करना मुझे लगता है जरूरी है और उस तरीके से बात होना चाहिए। बहुत सही बोला आपने। इसी नोट पर मैं आपकी बात से बात निकाल रही हूँ। कचरा निकालना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम सब मिलकर अपने दिमाग से कचरा निकाल लेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। जैसे हमारे साथ जिज्ञासा और रुद्र दोनों जुड़े और उन्होंने ये कोशिश करी है कि वो एक एक्टिविस्ट की तरह से इस कम्युनिटी को सपोर्ट करें। And Rudra, you have got a compliment as well because of your style and the confidence that you possess within you. और आप जिस तरह से एक एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रहे हो और कम्युनिटी को, LGBTQ कम्युनिटी के साथ में जुड़कर उनको सपोर्ट कर रहे हो, दैट इज एग्जेम्पलरी। एंड अलीजा खान ने ये बात बोली है और मैं ये चाहूंगी, शी इज अ स्टूडेंट ऑफ माइन, मैं तो ये चाहूंगी कि जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं वो सब इस कम्युनिटी के लिए, बाकी तो जो भी जिस तरह से कर सकते हैं कंट्रीब्यूट करें, लेकिन स्पेसिफिकली इस कम्युनिटी के लिए जिस तरह से जिज्ञासा अपने रिसर्च करके और जिस तरह रुद्र अपना एक्टिविज्म के साथ में पूरी हिम्मत करके इस कम्युनिटी को सपोर्ट करें, इसी तरह आप सभी लोग इस तरह से सपोर्ट करें। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन, जैसे शमीबा जी ने कहा, कि दिमाग का कचरा साफ हो जाएगा। So we all need to take that, you know, stuff and we need to be strict. आखिर में एक बात मैं रखना चाहूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि वक्त के मायने भी हमें रखना जरूरी है, लेकिन आखिर में एक बात, तो लंबा रिकॉर्डिंग जा नहीं पाएगा यूट्यूब पर। हाँ, कि जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं या बाद में फिर इस यूट्यूब पर इस वीडियो को सुनेंगे या इस पहल को सुनेंगे, तो मैं कहूंगी कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं या फिर उनमें आपके आसपास आपको पता चलता है कि ये समलैंगिकों में से आता है, LGBTIQ हो, तो ऐसे 10 लोग सोशल मीडिया पर अपने जरूर बनाए, उनकी बातों को समझे, उनके कुछ हक हो, उनको इमोशनली सपोर्ट करना हो या फिर उनको सोशली सपोर्ट करना हो, तो उनके सपोर्ट के लिए अपने माध्यमों का इस्तेमाल करें और जरूरत के वक्त उनके साथ खड़े रहे। यह आवाज होगी, या आंदोलन होगा, और इससे हम सब जो इक्वलिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें आप सबकी बहुत बड़ी इसमें सहायता होगी। थैंक यू फॉर सपोर्ट। Absolutely correct. With all the educative, you know, knowledge that you possess, Shamiba ji, it's wonderful to have you with us and the rest of the speakers also. जो क्योंकि वो प्राइड परेड में अभी already involved हैं, so they have to leave. उन्हें दोनों को जाना पड़ा, रामकली जी और सलमा जी को, एंड रुद्र स्टिल इज विद अस, जो कि एक बहुत अच्छे, मतलब ये बिल्कुल इतने यंग होने के बावजूद उन्होंने इस चीज को उठाया और एक एक्टिविस्ट के तौर पर वो इस कम्युनिटी के साथ जुड़े और इस तरह से वो काम कर रहे हैं। दैट्स वंडरफुल, दैट्स लवली, अप्रिशिएबल। और शमीबा जी, आपने जिस तरह से अपनी पढ़ाई करके और अब आप यूथ को पढ़ा रही हैं और इस चीज के लिए आप उनको इन्फॉर्म कर रही हैं कि हाउ एवरीबडी इज सपोज्ड टू टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी। एंड यस, ट्रू, सोशल मीडिया के थ्रू या जिस तरीके से भी आप इनसे जुड़ सकते हैं, आप सपोर्ट करें। और यही एक तरीका है, यही एक माध्यम है जिसके तहत हम लोग सब मिलकर के आगे चल पाएंगे। जहां भेदभाव नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो डेफिनेटली विल बी flourishing wonderfully, that we all need to as Indians. So that was wonderful because हर एक प्रोग्राम का एक proper decorum होता है, and all the participants who joined with us and still with us, they are listening to us so confident, so nicely and so patiently, and putting all the messages in the text box. I would request Professor Sanjeev Bhanawat, the one who is the main pillar behind this webinar series, to kindly express vote of thanks to all of us. So please sir. बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी, मुझे पुनः आमंत्रित करने के लिए। शाफिमा जी ने जो बात कही कि समानता के लिए जो उनका संघर्ष है वो एक आंदोलन और अभियान बने, हमारी भी इस अवसर पर यही शुभकामनाएं हैं कि आपका यह आंदोलन आगे बढ़े और इसके बाद समाज का हर वर्ग आपके साथ जुड़े। इसी उद्देश्य से ये जो छोटे छोटे प्रयास हैं, चाहे वेबिनार है, सेमिनार है, कॉन्क्लेव है, मेन स्ट्रीम मीडिया के जो प्रकाशन है, प्रसारण है, उनके पीछे मूल ध्येय यही है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आभारी हैं हमारे आज के जो एक्सपर्ट्स के रूप में इसमें सम्मिलित थे, शोभिमा पाटिल जी, सलमा चौधरी जी, रामकली जी और हमारे युवा साथी शुभम गुप्ता, स्वस्तिक सानी और रुद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने इस विषय के बहुत सारे पक्षों को अपने ढंग से व्याख्यायित करने की कोशिश की, समाज को सेंसिटाइज करने की कोशिश की। और जिज्ञासा राघव, जिन्होंने अपने शोध के जो संस्मरण है, शोध में आने वाली जो चुनौतियां थी, किस तरह से परिवार को सेंसिटाइज करते हुए
इस विषय को चुनने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया, डिसर्टेशन तैयार किया उनके प्रति, और देश के लगभग सभी अंचलों से 234 रजिस्ट्रेशन हमारे इस आज के आयोजन के लिए हुए थे। और जैसा कि हमारी एक कोशिश रहती है, क्योंकि सभी लोग जुड़ नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी आज अधिकतम संख्या 76 के आसपास पहुंची थी। हम जो भी रजिस्टर्ड ईमेल हैं उन पर ये वीडियो शेयर करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, उसके जो पेजेस हैं उन पे शेयर करते हैं, ताकि जो मित्र इस विषय में रुचि रखते हैं वो अपनी समय और सुविधा के अनुरूप जब चाहे इन विचारों को सुन सकते हैं और उस पर और अधिक चिंतन मनन करके इस आंदोलन को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि इस अकादमिक यात्रा में सहभागी होने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उस पर अपने कमेंट्स करके हमको अपना मार्गदर्शन दें और इस विचार यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग और मार्गदर्शन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का डॉक्टर उषा साहनी के सरस्वती वंदना से लेकर के इस पूरे आज के आयोजन को संचालित करने का जिस रूप में उन्होंने किया, उसके लिए उनके प्रति आभार। एक बार उन्हें हमारी अगली तो हमारी वेबिनार वो 10 जुलाई को है, उसमें आप सभी आमंत्रित हैं। 10 जुलाई शाम 5:30 बजे नवीना चक्रवर्ती कलकत्ता की हैं, वो बातचीत करेंगी किस तरह से हम YouTube के माध्यम से अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं और स्टोरी टेलिंग, इन विषयों पर वो अपनी बातचीत करेंगी। तो उसकी सूचना मैं आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और आपके ईमेल रजिस्टर जो है उनके माध्यम से भिजवा देंगे। उम्मीद है फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैम मैं चाहती हूँ इस तरीके की सेक्शुअल माइनॉरिटीज अगर जितनी भी पॉसिबल हो सके वो हो, क्योंकि जितने भी लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ वो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा भी अगर अपने साथ लेकर जा रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। उनसे एक चेन बनेगी, चेन बनना इंपॉर्टेंट है। 1-2 को बताएंगे, 2-3 को, 3-4 को। और मुझे लगता है कि इंक्लूसिव सोसाइटी के लिए ये इम्पोर्टेंट है, चेन क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल माइनॉरिटी के रिगार्डिंग। तो ये चीजें जितना माहौल बनाएंगी उतना ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंचेंगी। तो बस इस तरीके की youth had started, definitely it is going to happen. See, all the youngsters, they are doing it, and that's true. We all can wind it up with Happy Pride Month. चाहे कितना ही chaos हो जाए इस वीडियो पर, let us all say together, Happy. Please say it. Unmute yourself. Happy Pride Month, all of you. Happy Pride Month. Happy Pride Month to all. Yeah. Okay, take care. We'll meet soon. Yes. Yeah. Thank you very much. Bye. Take care. Sabrangi Satrangi Salam. Happy Rainbow. Okay. Bye bye. Bye.